Okay, good evening, everyone. Am I audible? So, uh, we are into the preparations on Law CT. Hopefully, we will be expecting this exam very soon. As per the notification for, as you are aware about that Maharashtra CT is already like the multiple type of exam which is conducted for almost all the types of streams. So, for a technical stream, there is an MST CET for engineering and medical, and there are multiple other CETs also. So from their website, we have already got that information that the CET, technical CET on the biology wala jo CET hai, that will going to happen in the first and second week of October. So probably we will be expecting that somewhere around 18-20 October के आसपास ये महाराष्ट्र लॉ सीटी भी होना चाहिए, both 5 year and 3 year. Number of applicants may not be that much high as compared to the technical CETs is having. So that is why window for those CET was very like long. 10-10 दिन का विंडो दिया हुआ है, मतलब बायो सीटी के लिए भी और टेक्निकल वाला जो आपका इंजीनियरिंग सीटी होता है उसके लिए भी. तो प्रोबेबली वन डे एग्जाम होता है. नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मुझे लगता है लगभग समवेयर वही रहेंगे. Last year, close to 36,000 candidates has appeared form for CET 3 year, right? And close to 20,000, less than 20,000, somewhere between 18 to 19,000. So candidates have filled the form for candidates had filled the form for 5 year law CET 5 year. तो अभी आप ये समझिए कि चांसेस कि किस दिन एग्जाम्स होगा, as absolutely no one knows what exactly will going to happen. As we know that IBPS ने क्लर्क का एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट किया है बैंकिंग के लिए. We have seen that there is an exam for IIT JEE, NEET has already conducted successfully, and IPM इंदौर का एग्जाम होता है, वो भी मैं सब आउटसाइडर एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ जिसके लिए आपको सेंटर पे जाना पड़ता है. ये एग्जाम तो ऑलरेडी हो चुके हैं. So we are expecting that those who will be appearing for CLAT this year to 28 September वो लगभग हो जाना चाहिए. तो उसी लॉजिक से मुझे ऐसा लगता है कि second week of October will be the tentative date for both the exams. So in a practical sense हमें अवेयरनेस कुछ नहीं है इस बारे में कि एग्जाम कब होगा, बट as per the rule, as per the condition, minimum 21 days का आपको टाइम मिलेगा डेट प्रिपरेशन के लिए. ठीक है, तो 21 डेज अगर आज से भी काउंट करते हैं तो भी सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर पे पहुंचते हैं हम लोग. बट स्टिल माय कंसर्न इज हमें अपना प्रिपरेशन ऐसा रखना है कि लेट अस अज्यूम कि 21 डेज ही है या 25 ऑड डेज ही अवेलेबल है या लेस देन 30 डेज अवेलेबल है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा प्रिपरेशन हमको रखना है. दैट इज व्हाई दिस सेशन इज प्लान्ड कि हम कैसे अपने आप को डिस्कशन पे इसमें रख सकते हैं, राइट? तो इन अ ब्रॉडर सेंस लॉ सीईटी 3 year 5 year आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स. ठीक है, द बेस्ट पार्ट इज इफ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दो बड़े ब्रांड्स हैं जो सबके लिए लाइक 3 year 5 year बोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज GLC एंड ILS पुणे. ठीक है, in the last PPT I will show you our results also, and our candidates जो गए हैं GLC, ILS और PUR में उनका मैं आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा टाइम परमिट किया तो. अदरवाइज आई विल टेल यू कि द स्कोर्स एंड कट ऑफ जो भी था. So GLC Mumbai and ILS Pune are one of the topmost law colleges of our country, and ILS is one of the oldest college of law, for law. ठीक है, and GLC is also very well recognized law college across the country. The best part of GLC and ILS is their fees. You will be surprised that GLC का जो fees है वो less than 20,000. I think if I'm not wrong 12 से 18,000 के बीच में कुछ amount आता है. That is the fees. And ILS is somewhere between 25,000 odd. That is per year fees. Trust me, इतना कम fees है कि आप अपनी internship करके भी fees pay कर पाएंगे. This is not practically possible in law colleges like CLAT and other exams. So affordable fees is one of the very important criteria, because ultimately how much you are investing, that is also more crucial. So let's say if you are going for an LSAT exam in which LSAT में आपको पता चल रहा है कि भाई फीस जो है वो पर ईयर का 5 to 8 lakhs रुपीस है. So it is practically unaffordable for many of us.
तो लॉ सीईटी ये एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जीएलसी और आईएलएस जैसा ब्रांड भी है और फीस भी अफोर्डेबल है। तो इसीलिए ये एग्जाम बहुत सीरियस होता है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यू कैन इमेजिन, without any much promotion, trust me, no promotion from the government side, DT कोई बहुत बड़ा प्रमोशन नहीं करता, still the number of applicants are too high, 36,000 for 3-year candidate last year applications, और 2 दिन का विंडो उन्होंने खोल दिया है। आई एम प्रीटी श्योर 5 से 10,000 विंडो और बढ़ेगा दिस ईयर, प्रोबेबली समवेयर अराउंड 40-45,000 ने भरा होगा। एग्जाम देने कहा जाते हैं वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, वी डोंट नो, ठीक है। देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। पूरा जो लॉ स्ट्रक्चर जिस तरीके से पढ़ाया जाता है वो एम्फेसाइज होता है। तो अगर आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स हैं तो बहुत बड़ा एडवांटेज है फॉर लॉ सीटी एग्जाम के लिए। तो ये भी एक आपको समझते हुए चलना है कि इफ वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड समवेयर वी वांटेड टू गो फॉर एन लॉ करियर, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई लॉ सीटी हमारे लिए बहुत प्रोमिनेंट है। इसके बाद आई होप आप सब लोगों ने ये बात तो सोचा ही होगा, तभी आप यहाँ सेमिनार के लिए भी जुड़े हैं, एंड प्रोबेबली यू माइट बी प्लानिंग कि भाई हमें एक प्रोमिनेंट करियर की तरफ मूव करना है। एक ऐसा प्रोफेशनल और प्रोमिनेंट करियर एट प्रेजेंट लॉ जो है बेसिकली आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक स्टेबल करियर, रिकॉग्नाइज करियर की तरफ अप्रोच कर पाए, ठीक है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, दिस स्टेटमेंट I don't want to make this, I don't want to exaggerate this particular statement, but my concern, my point on saying this particular statement is, although all career option have their earning capabilities specifically, but law is one of the career, one of the few careers which indulge, which have a automatic earning capability indulge in that. Means अगर आप इन फ्यूचर में जाके 5 years के बाद आप बोलते हैं, लेट्स से गर्ल्स के लिए खासकर, ज्यादातर गर्ल्स हैं आज के सेशन में भी, तो गर्ल्स बोलते हैं कि नहीं कुछ, आई डोंट वांट टू जॉइन कॉर्पोरेट, आई डोंट वांट टू गो फॉर जुडिशरी, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, आई जस्ट वांट टू प्रैक्टिस एट फ्रॉम एट होम। माय सिस्टर इन लॉ इज अ लॉयर from since last 6 months. Courts are closed in Mumbai. She is working from home and only for drafting she is earning a well decent amount monthly, जो आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप सोचिए इतने वर्स्ट सिचुएशन में भी शी इज अर्निंग। So this is what the best part of the law degree, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि अर्निंग कैपेबिलिटी आपके साथ जुड़ा रहेगा, बट अनडाउटेबली जो 5 years है अच्छी जगह से डिवोट करना है। I don't want to take name of those colleges in Nagpur also, though these colleges don't ask for colleges की presentation, मतलब प्रेजेंट होने के लिए भी कोई आपको कंसर्न नहीं देते हैं। तो ऐसे कॉलेज में अगर आप जाओगे तो you will be getting degree. For those colleges, trust me, अगर केवल डिग्री के लिए जाना चाहते हो तो वो कॉलेजेस हैं। आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कौन से कॉलेज में केवल डिग्री मिल जाएगा आपको, आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, बट इट वोंट एड एनी एडेड एडवांटेज टू योर स्किल्स। बट अगर आप नागपुर से भी करते हैं और अगर अम्बेडकर के, दोनों अम्बेडकर जो कॉलेजेस हैं, एक तो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है और एक अपना अम्बेडकर है, तो भी आपके लिए एक सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि भाई यू विल लर्न मैनी थिंग्स, एंड ये जो अर्निंग कैपेबिलिटी है आप सीखोगे 5 साल में। और अगर आपने कुछ समय भी वर्क कर लिया किसी लॉ फॉर्म के साथ, देन तो ये लाइफ लॉन्ग स्किल्स है फिर आपके लिए। सो इसलिए ये एग्जाम एक इंपॉर्टेंट एग्जाम बन जाता है। फाइनेंशियली जो पर्सन ज्यादा अफोर्डेबल नहीं जा सकते हैं, जो बाहर के बड़े शहरों में नहीं जा सकते, उनके लिए ये एग्जाम हो सकता है। कट ऑफ कितना मार्क्स आना चाहिए वो मैं लेटर स्टेज में बोलूंगा, बट वन थिंग लेट मी क्लियर यू वन थिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आपको बोल रहा हूँ, विदाउट प्रिपरेशन एग्जाम में जो कॉलेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इम्पॉसिबल है। विदाउट प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा। ऑल्दो एग्जाम हैव नो नेगेटिव मार्किंग, स्टिल आपकी प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है। अभी भी 30 दिन है, और प्रैक्टिकली अगर सीटी में अगर आपने 30 दिन डिवोट कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ आवर्स को, तो भी आप बहुत हद तक जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो हम तो वहां तक पहुंच सकते हैं भाई, ठीक है। सो these are all things which is crucially important, and I personally feel आप ये बात को बहुत क्लियरली इस बात को ऑब्जर्व करते हुए ही इस बात को ध्यान में रखेंगे भाई, ठीक है। Let us just try and understand the syllabus of Maharashtra Law CET in a broader sense. मैं आपको उसका सब्जेक्ट वाइज डिटेलिंग बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आएगा, एंड देन इन द लेटर स्लाइड आई विल बी एक्सप्लेनिंग बोथ 3 year 5 years का एनालिसिस करूंगा मैं, जिसमें लास्ट ईयर के पेपर में कितने क्या मार्क्स किसमें पर्टिकुलर वेटेज था उसका, तो वो आपको पर्टिकुलरली मिल जाएगा बहुत इंपॉर्टेंटली।
ठीक है. Starting from verbal ability, this is one of the crucial, very important section. Verbal ability is one of the section where ये आपके लिए दोनों सिचुएशन में ही, मतलब अगर आपने अच्छा स्कोर लाया तो भी यही इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छा स्कोर आप नहीं ला पाए तब भी यही इसके लिए जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि वर्बल एबिलिटी इन अ ब्रॉडर सेंस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट है. इनफैक्ट 3 ईयर में तो आपको पता है कि मराठी में आप दे सकते हैं एग्जाम, ऑल्दो मराठी में होने के बाद भी वर्बल एबिलिटी का सेक्शन होता है, तो भी मेरा ये मानना है कि वर्बल एबिलिटी में अगर आपने प्रॉपरली स्मार्टली एफर्ट्स लिया तो बहुत अच्छा आपके लिए एक चांस ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी है स्कोर करने का. लास्ट ईयर का अगर आप लास्ट ईयर तो मैं अभी आगे की स्लाइड में दूंगा ही, मैं टॉपिक वाइज अगर आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक है. सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज ऑलवेज अ की. ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, व्हेन आई से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, शुड रिमेंबर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब हो गया वेयर आप एक पैसेजेस को रीड करके उसमें आंसर्स निकाल रहे हैं. तो दिस सेक्शन लगभग आप मान के चलिए अराउंड 15 क्वेश्चन तक का होता है, जिसमें 3 पैसेजेस होने वाले हैं. ठीक है, पैसेजेस जनरली बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं. ओनली थिंग इज इफ योर रीडिंग स्पीड इज गुड, ट्रस्ट मी, यू कैन क्रैक ऑल 15 क्वेश्चंस एट अ टाइम. कोई इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है. ग्रामर इज समथिंग विच वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. तो आपको ये पता ही है कि ग्रामर में मेजरली क्या आता है. तो ग्रामर में अगर आप समझेंगे जो भी टेंसेस से लेके जो पार्ट ऑफ स्पीच के स्टेटमेंट्स होते हैं वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. तो लाइक ग्रामर करेक्ट सेंटेंसेस हो सकते हैं, ग्रामेटिकल करेक्ट वर्ड आपको देखने को बोल सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, पैराजम्बल्स हो सकते हैं. ये ऑल पार्ट आपके ग्रामर के अंडर में आएगा. एंड थर्ड जो होगा वो होगा वोकैबुलरी. वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ क्लोज टेस्ट, सिनोनिम एंड एंटोनिम. पिछले 1-2 सालों में वोकैबुलरी का जो वेटेज रहा है वो काफी रिड्यूस हो गया है. तो यू मे नॉट फाइंड दैट मेनी क्वेश्चंस इन वोकैबुलरी एज कंपेयर टू दी 3 साल 4 साल पहले जो फाइंड किया करते थे हम लोग. क्लोज टेस्ट का एक पार्ट आपको जरूर मिलेगा जहां पर वोकैबुलरी का बहुत हद तक ज्ञान नहीं हो, बट एंटोनिम सिनोनिम इज स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका रटिफिकेशन, जो स्पेसिफिकली जो आपने जितना रटा हुआ उसी चीजों को. तो अगर ब्रॉडली अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, वोकैबुलरी जो होगा उसमें अब एंटोनिम सिनोनिम के आने के चांसेस कम है. अब प्रिपरेशन में अगर आप इसकी मुझे पूछें, मेरा आपसे एक ही सजेशन है, फोकस ओनली ऑन 2 थिंग्स. अब 30 दिनों की बात करते हैं, 30 दिनों में ये सेक्शन की कैसे प्रिपरेशन करना है. पहला, एज मेनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू कैन सॉल्व, as many. If you will solve many reading comprehension, it will going to impact positively in other sections also. Ultimately पूरा पैटर्न अगर आप मैं अभी धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा वो सब कुछ रीडिंग पे. इनफैक्ट वी आर डीलिंग विद लॉ एंट्रेंस, वी आर डीलिंग विद कैट एंट्रेंस, वी आर डीलिंग विद गवर्नमेंट एग्जाम्स, वी आर डीलिंग विद अदर मैनेजमेंट एग्जाम. Almost all entrance exams are now focusing on one thing: your reading capabilities. तो हाउ वेल यू आर रीडिंग, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन आपने कितना रटा हुआ है या कितने नॉलेज है आपको चीजों. तो आपका रीडिंग एंड देन कॉम्प्रीहेंशन ये इंपॉर्टेंट है. ग्रामर वाला एक सेक्शन है, मैडम के वीडियो लेक्चर्स हैं, अगर जिन्होंने ऑलरेडी अटेंड किया है दे नो दिस. आपने अगर वो ग्रामर के पूरे लेक्चर कर लिए, माय पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो 20 से 25 क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं आपके ग्रामर के, वो मैक्सिमम कैप्चर हो जाएंगे, बशर्ते आप उसको टेस्ट वगैरह भी उसके दीजिएगा. एक बार वो लेक्चर्स पूरे हो गए, ये ग्रामर आपका कंप्लीट हो जाएगा. नाउ क्लोज टेस्ट जो है वो आपका आरसी में ही कैप्चर होने वाला है. क्लोज टेस्ट इज लाइक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के रहेंगे, जहां पर आपको सेंटेंसेस दिए रहेंगे और उस सेंटेंसेस एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपके पास वर्ड्स को फिल करना होगा, आपको उसको कंप्लीट करना होगा. तो क्लोज टेस्ट आर जस्ट लाइक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का आप कर रहे हैं और उसको कर रहे हैं. तो माय कंसर्न इज एब्सोल्युटली फॉरगेट एंटोनिम सिनोनिम फ्रेजेस, ये अब करने का टाइम नहीं. अगर आप पहले से करते आए हैं बहुत अच्छी बात है, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो वो आपको मिलेंगे. अब ये टाइम नहीं बचा है कि आप एक एक एंटोनिम सिनोनिम लिखते बैठिए और याद करते रहिए. कहने का मतलब जिस्ट में यही है, ब्रीफ में मैं यही बोलूं, you don't need to mug up things now. You need to focus only on your comprehension skills so the maximum section can be captured. Now, one thing that you should understand, both 3-year and 5-year exams, negative marking, there is no negative marking. तो अगर no negative marking है
तो इसको रटने से भी कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमको पता है कि क्या होगा क्या नहीं होने वाला, याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो भी नहीं है। उससे बेटर ये है कि इसको करके हमको निकलना है। I will conduct a session at least 8 days before the actual exam. मैं definitely इस पे करूंगा, उसमें entire फाइनल स्ट्रेटेजी के बारे में भी डिस्कस करूंगा, उसमें फाइनल डेज आपको कैसे प्रिपरेशन करना है फाइनल में। बट फिलहाल अभी मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा, कंसिडरिंग कि आपको क्या सेक्शन की स्ट्रेटेजीज होगी। बट इतना मैंने आपको बताया अभी प्रिपरेशन के टाइम पे, जस्ट फॉरगेट अबाउट एंटोनिम सिनोनिम, जस्ट लीव इट, बिल्कुल मत फोकस कीजिए। फोकस किस पे करना है? रीडिंग पे। ग्रामर एक बार मैडम की सेशंस का कंप्लीट वीडियोस कंप्लीट कर लीजिए, फिनिश्ड, उसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, लीगल एप्टीट्यूड। अगर आप प्रिपरेशन पहले से किए हैं तो आप जानते होंगे सीईटी का ये एकमात्र स्कोरिंग सेक्शन, स्कोरिंग सेक्शन बोल लीजिए आप इसको, स्कोरिंग पार्ट है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड। लीगल, लीगल में पहले बच्चों का जो मिथ होता है, सबसे पहले आपके माइंड में एक पॉइंट है कि लीगल लीगल हम कैसे करेंगे। ट्रस्ट मी, लीगल इज द इजीएस्ट सेक्शन, बिकॉज आप यहाँ पर कॉलेज का एग्जाम नहीं अपियर कर रहे हैं, you are appearing an exam called an entrance exam पे आप appear कर रहे हैं। तो entrance exam निकालने वाले को पता है कि you are not a lawyer, you are just a basic layman, so they can't ask you very detail में सब कुछ, बहुत सारी डिटेलिंग वो नहीं कर सकते आपके लिए। so what they do basically is they provide you principles and based on those principle there are fact, और fact के basis पे आपको क्वेश्चन होने। last 2 years में 100% क्वेश्चन, close to 100% question were based on principle and fact. That is, I'm talking about CET. So there is no question on legal knowledge. Legal knowledge का क्वेश्चन उन्होंने करंट अफेयर्स में डाल दिया था, बट ज्यादातर पूरा जो लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन है वो लीगल रीजनिंग के नाम से जाना जाता है। व्हेन आई से लीगल एप्टीट्यूड, इसका सीधा मतलब होता है, व्हेन आई से लीगल एप्टीट्यूड इसका मतलब होता है लीगल नॉलेज। लीगल नॉलेज इसको हम एलके बोलते हैं, एलडीके बोलते हैं, लीगल डीके। लीगल रीजनिंग मतलब प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रिंसिपल और फैक्ट वाले क्वेश्चंस अगर आपने करना है, मैं एक ऐसा बच्चा, मैं मतलब मैं एक ऐसा कैंडिडेट आप समझ लीजिए आपके सामने, जिसने कभी जिंदगी में लॉ नहीं पढ़ा है, मेरे पास जीरो लॉ का नॉलेज है, तो भी मैं इस लीगल रीजनिंग के सेक्शन को कर सकता हूं अगर मेरे पास क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है। तो इंटायर लीगल सेक्शन विल डिपेंड ऑन रीडिंग स्किल्स। सो रीडिंग स्किल्स के लिए आपको फिर से वही बात बोलूंगा, मैं बार बार आरसी पे आऊंगा, अभी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में आएगा। तो लीगल रीजनिंग सॉल्व करना है तो यू नीड टू नो लीगल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपना अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब टॉपिक्स की बात करें, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ ऑफ टॉर्ट, मिसलेनियस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिमिनल एंड टॉर्ट। इनमें भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, अगर 40 मार्क का है तो आप मान के चलिए 30 से 35 क्वेश्चन इन्हीं में होते हैं। तो सर इनका नॉलेज पूछते हैं क्या? नहीं, आप ध्यान रखिएगा, लीगल प्रिंसिपल बहुत ही रेयरेस्ट होता है, बट यस आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एग्रीमेंट वॉइड होता है नहीं होता है। अभी बेनिफर मैम की कुछ लेक्चर सुन सुन के थोड़ी बहुत मुझे भी ज्ञान हो गया है, अदरवाइज प्रैक्टिकली स्पीकिंग लीगल के कुछ टर्मिनोलॉजी जो होते हैं वो बेसिकली बियॉन्ड आवर लिमिटेशन होते हैं, जो आप लॉ कॉलेज में 5 या 3 साल में पढ़ने वाले हैं। तो इन अ ब्रॉडर सेंस अगर आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट कौन सा वॉइड है कौन सा नहीं है, थोड़े बहुत मैक्सिम्स की आपको पता होना चाहिए, थोड़े बहुत आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर मीनिंग, पर्टिकुलर उसका मीनिंग क्या होता है, सुओ मोटो अगर लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या होता है। अगर इतना भी आपको बेसिक नहीं पता देन इट विल बी डिफिकल्ट। अदरवाइज अगर आप बोलोगे तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, आप लॉयर के घर जाएंगे किसी के यहाँ तो आपको मिल ही जाएंगे, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है, वो नहीं पढ़ना है आपको, बिल्कुल छोड़ दीजिए उसको। मैक्सिमम एक बार अगर आपने बेनिफर मैन के सारे लेक्चर्स कर लिए और क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ ऑफ टॉर्ट, मिसलेनियस, सारे लेक्चर रिकॉर्डेड हमारे वेबसाइट में अपलोडेड हैं, वो आपने कर लिए, और आदित्य कृष्णा के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर वो कर लिया, आपको ये सेक्शन में दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल अपने मॉक्स में और टेस्ट पेपर में आपको करिए। दिस इज अ स्कोरिंग सेक्शन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर इसमें स्कोर नहीं कर पाए ना तो मुश्किल होगा, इसमें स्कोर करना है। मैं सेक्शन वाइज आपको बता दूंगा, मतलब एग्जाम वाइज बता दूंगा कि क्या होगा। नाउ दिस इज समथिंग रियली रियली, you can say, I'm not saying it's a tough section, I'm saying it's a very tricky, very very tricky.
द बेस्ट थिंग इज, शुड रिमेंबर, मैं बार बार याद दिलाऊंगा, you are not appearing in exam called CLAT or IELTS where negative markings are there. Should remember there is no negative marking. ये सेक्शन इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यहां पर जो स्टैटिक जीके का वेटेज होता है ना, वो बहुत हाई होता है स्टैटिक जीके का। अब स्टैटिक जीके में आप भी जानते हैं, अभी तक हम सोचते थे कि स्टैटिक जीके बोले तो क्या लीगल जीके, सॉरी स्टैटिक जीके बोले तो क्या हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। बट पिछले 1-2 सालों से यहाँ लीगल जीके का भी सेक्शन आने लगा है। तो लीगल जीके अगर आता है तो ये अपने आप में आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग दे देता है कि भाई हमें लीगल जीके को भी इतना ज्यादा इग्नोर नहीं करना है, मतलब लेक्चर्स जो करवाए जाएंगे वो रहेंगे। पर स्टैटिक जीके समथिंग इतना वास्ट है जिसकी लिमिट नहीं। हमने शुभम द्विवेदी सर के पूरे लेक्चर्स को क्रिस्प करके हिस्ट्री, साइंस और इकोनॉमी, ज्योग्राफी और मिसलेनियस करके हमने बनाया है। ट्रस्ट मी, वो बहुत इफेक्टिव है। वेबसाइट में वो भी अपलोडेड है। एक बार अगर सारे लेक्चर्स देख लिया आपने ढंग से, आपको बहुत हद तक कवर हो जाएगा। बट ये सेक्शन का कोई गारंटी नहीं ले सकता है। इस सेक्शन को डील करने का एक ही तरीका है, जो समझ आए मार्क करो और निकलो। ठीक है, इसको ना रट सकते हो, ना एग्जाम के टाइम पे आप इसमें बहुत हद तक सोच सकते हो। 40 क्वेश्चन यदि हैं, मान के चलिए करंट अफेयर्स में, आपके हिसाब से मुझे चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्लीज ट्राई एंड गिव मी आंसर सो थोड़ा इंटरेक्टिव बने। आपके हिसाब से 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगना चाहिए रफली? टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है आगे आपको समझ में आएगा। मैं अभी जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाह रहा हूँ। आई नीड योर आंसर एवरीवन। सी, दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। इफ यू आर प्रिपेयरिंग प्रॉपरली, यू माइट बी नोइंग दिस कि भाई कितना टाइम अप्रोक्सीमेट लगना चाहिए। Prutha and Parth का कहना है 5 minutes because you are preparing for CLAT, so then that means 5 मिनट में आप कर सकते हैं। बट एक का श्रेणी ने तो 1 घंटे का टाइम दिया है। बेटा कितने का घंटे का पेपर है टोटल? 2 hours का पेपर है। 1 घंटे अगर जीके करोगे तो बचा हुआ 1 घंटे क्या करोगे? उसको भी जीके ही कर लेना, कुछ नए क्वेश्चन बना के उनको दे देना, क्योंकि बाकी सेक्शन तो होना नहीं है। समझिए, 40-45 मिनट्स नो, एब्सोल्युटली नो। आपको मैक्सिमम टाइम मैं बोल रहा हूं 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहिए। अब सर 10 मिनट में मैं कैसे पढ़ लूंगा ये 40 क्वेश्चन? कोई बात नहीं श्रेणी, शायद श्रेणी ने गलत क्वेश्चन समझा, कोई बात नहीं बेटा। सो सर कैसे पढ़ लूंगा मैं ये क्वेश्चन? अगेन कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी फिर से आपको? अगेन आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए अगर किया है तो ये सेक्शन आप मैक्सिमम 10 मिनट में कर सकते हैं। ये सेक्शन को ऐसे ही डील किया जाता है। आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही कुछ कर लो, अल्टीमेटली मैक्सिमम आपने अगर इसको 10 मिनट से बियॉन्ड जाके दिया, 10 मिनट भी मैं किन के लिए बोल रहा हूं? जो बहुत ज्यादा नहीं किए हैं, जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। अदरवाइज जिन्होंने प्रिपरेशन किया है, नॉट मोर देन 6 to 8 मिनट से ज्यादा लगता ही नहीं है इसको। फटाफट फटाफट पढ़ना है, मार्क करना है, पढ़ना है, मार्क करना है, पढ़ना है, मार्क करना है, क्योंकि तो आपको पता है सॉल्व करना ही नहीं है। तो यहाँ पर भी करंट अफेयर्स को सॉल्व करने में भी आपको वर्बल एबिलिटी लगेगा। अब सर करंट अफेयर्स कितना पढ़े? तो शुभम सर के, हमने और मेरे कुछ लेक्चर्स दोनों के मिला के लास्ट जुलाई 2019 से लेके जुलाई 2020 तक लगभग 13 मंथ हो रहे हैं। ठीक है, 13 महीने होते हैं। जुलाई टू जुलाई 13 मंथ होंगे, जुलाई दोनों को काउंट करेंगे तो 13 मंथ के 13 कुछ 14-15 ऑड लेक्चर्स हैं। उसमें से भी अगर आपने जनवरी 20 से चालू किया और जुलाई 20 तक आपने पूरा, जुलाई बोल रहा हूँ सॉरी, अगस्त 20, अभी शुभम सर का एक लेक्चर और करना है हमको, तो अगस्त 2020 तक अगर हमने कर लिया, आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब आज के जो करंट उसमें, ऑल्दो सीईटी हैज नॉट अपग्रेडेड, बट आई एम एक्सपेक्टिंग सीईटी शुड आल्सो अपग्रेड। लास्ट ईयर आपको मैं बता दूं, सीईटी ने आईबीपीएस से एग्जाम कंडक्ट किया था। उसके पहले का मुझे याद नहीं है, बट पहले शुरुआत में तो आईबीपीएस नहीं कंडक्ट करता था। आईबीपीएस एक बैंकिंग इंस्टीट्यूट है। तो लास्ट ईयर से या उसके पहले वाले से, मुझे लास्ट ईयर का तो श्योर हूं मैं, लास्ट ईयर से आईबीपीएस कंडक्ट कर रहा है। और आईबीपीएस क्या करता है? बैंकिंग के एग्जाम्स के वगैरह वगैरह की तैयारी करवाता है।
मतलब तैयारी करवाता है, सॉरी, एक इंस्टीट्यूट है जो एग्जाम करवाता है आईबीपीएस। तो पिछले बार का जो जीके था ना, बहुत हद तक आईबीपीएस या बैंकिंग स्टाइल पे बनाया हुआ जीके था। बैंकिंग स्टाइल का जीके कैसा होता है? जो बेस्ड होता है करंट स्टैटिक पे, ठीक है? तो करंट स्टैटिक पे बेस्ड होता है। अब व्हाट इज करंट स्टैटिक? लेट मी टेल यू वन थिंग। आपने स्टैटिक सुना, आपने करंट सुना। व्हाट इज करंट स्टैटिक? करंट स्टैटिक वो है जो ऐसा स्टैटिक वाला पार्ट जो करंट में डिस्कस हुआ होगा। तो जो अगर कॉन्स्टेंटली रीडिंग कर रहा है न्यूज़पेपर्स की, जो कॉन्स्टेंटली नोट्स बना रहा है, जिन्होंने ये कॉन्स्टेंटली किया है, तो ये वाला जो सेक्शन है उसका करंट स्टैटिक वाला सेक्शन, इट्स नॉट अ बिग डील। उसको कहीं ना कहीं वो कैप्चर कर ही लेगा उसको, ठीक है? आई एम नॉट श्योर, मैं इतना श्योर हूं कि भाई आप 40 आउट ऑफ 40 कर ही नहीं सकते हो करेक्ट। अगर आपने तुक्का मारा है तो बात अलग है, तो अलग है, और लग गए वाली बात है, नहीं तो अदरवाइज नहीं। एट मैक्स 40 में से यहाँ पर अच्छा स्कोर होता है 20, एक अच्छे बच्चे का। तो मतलब 20 आपके ऐसे क्वेश्चन है तो नहीं बनेंगे, बट ट्रस्ट मी 20 लाना भी आसान नहीं है। तो अगर आपने प्रिपरेशन स्टाइलिश मतलब उसको उस तरीके से स्टार्ट किया जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपने स्टैटिक के लिए पूरे वो लेक्चर्स देख लिए, थोड़ा बहुत नोट्स बना लिया, और करंट के लिए आपने जुलाई से लेके 2019 से लेके जुलाई अगस्त 2020 तक का आपने सारे वीडियोस देख लिए। इसके बाद पूरा आपका बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाती है। अब आता है लीगल जीके वाला सेक्शन, ठीक है? लीगल जीके वाला। नाउ लीगल जीके जो सेक्शन है, इसके लिए हमने काफी सारे टेस्ट बनाए हैं। अच्छी बात है अगर इसके क्वेश्चंस आए, क्योंकि लीगल जीके के सेक्शंस की एक लिमिट है। लिमिट इन द सेंस ऐसा कोई बहुत भयंकर सारी लिमिट नहीं है जैसे कर स्टैटिक जीके में। हिस्ट्री अपने आप में 3 हिस्सों में बटी हुई है, ज्योग्राफी, फिर साइंस, फिर इकोनॉमी। इतना लीगल जीके में नहीं है, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। तो लीगल जीके में ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे आते हैं, लीगल जीके में ज्यादातर कुछ स्पेसिफिक लॉ पे क्वेश्चंस आते हैं जो रीसेंट की पास्ट न्यूज़ेस में हुए हैं। तो ज्यादातर आपको ये ध्यान रखना कि ये स्कोरिंग ही रहता है, ये मिल ही जाता है। बट तो भी ओवरऑल ये सेक्शन इज टफ। टफ इन द सेंस आपको इसको इसी तरीके से डील करना है कि भाई हमको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा कि इनके ऑर्डर्स क्या होने चाहिए ताकि आपको पता चले। आते हैं अगले सेक्शन पे, सेकंड लास्ट, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। अब जल्दी से बताइए आप लोग चैट बॉक्स में, व्हाट डू यू थिंक दिस सेक्शन एज पर योर अंडरस्टैंडिंग? 3 लेवल में डिसाइड कीजिए, इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट। जल्दी से लिख के बताओ मुझे। एग्जाम के हिसाब से बताना, अपने हिसाब से नहीं बताना। आपके हिसाब से कैसा होता है ये सेक्शन लॉजिकल वाला, इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? ओके, सो देखो बाकी लोग पार्टिसिपेट करिए, ज्यादा अच्छा रहता है। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई मैंने अभी तक ये क्वेश्चन को एड्रेस नहीं किया था, इजी और मॉडरेट में डिफरेंस क्या है। हाँ, इजी और मॉडरेट या का मतलब क्या है यहाँ पर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक परसेप्शन आपने बनाया है, आपके हिसाब से इजी का मतलब होता है जो हमको सॉल्व करते बनता है, जिसको सॉल्व करने में मजा आता है। बट यहां पर इजी का मतलब किसी भी एग्जाम में, लिसन केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं आपको, और पिछले साल के बच्चों की गलतियां भी बताऊंगा। इजी का मतलब होता है अ सेक्शन विच इज टेकिंग लेस अमाउंट ऑफ टाइम। तो जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको लेस देन मिनट लग रहा है, जिस पर्टिकुलर सेट को सॉल्व करने में, 5 क्वेश्चन के सेट को सॉल्व करने में 5 मिनट से कम लग रहे हैं, वो इजी है। और जिस सेक्शन को सॉल्व करने में आपको मोर देन अ मिनट लग रहा है, हर जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो मॉडरेट में चला जाएगा। और जो आपको 2-3 मिनट से ज्यादा का टाइम ले रहा है वो डिफिकल्ट होता है। आपको बनता है या नहीं बनता है उससे क्राइटेरिया नहीं होता है। एग्जाम के दिन आपने जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लेस देन 1 मिनट लिया वो इजी, 1 मिनट के से 1-2 मिनट के बीच में लिया वो मॉडरेट, और जहां 2-3 मिनट से ऊपर टाइम निकल गया वो डिफिकल्ट है। लास्ट ईयर आफ्टर टेकिंग दिस पर्टिकुलर सेशन ऑल्सो, मैंने ये सेशन लिया भी था, अभी कुछ बच्चों का ये एक स्पेसिफिक मिथ था कि लॉजिकल बहुत आसान होता है। तो उन्होंने क्या किया, मतलब अंडरस्टैंड उन्होंने क्या किया, आई डोंट नो। हमने उनको क्लियरली बताया था लॉजिकल किसी भी हालत में पहले नंबर पे मत उठाना। सीटी में मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, तो पहली बार सुन रहे हैं सीटी के लिए, यू हैव चॉइस टू मूव एनी सेक्शन एज पर योर टाइमिंग। आज तक का तो ऐसे ही,
ठीक है, आगे का क्या होगा नहीं पता। वैसे मेरे हिसाब से पैटर्न सीईटी, मैं एमबीए सीईटी का पैटर्न लगभग 17 सालों से देख रहा हूँ, सेम ही है, 17 ईयर्स से। लॉ सीईटी का पैटर्न लगभग लगभग सेम ही है। सो देर आर वेरी फ्यू पॉसिबिलिटी दैट द पैटर्न विल गेट चेंज। पॉइंट ये कि पैटर्न सेम रहेगा। बच्चों ने गलती क्या की, दे हैव स्टार्टेड विद लॉजिकल सेक्शन। उससे भी सबसे डिफिकल्ट चीज क्या होती है, एनालिटिकल अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट वाला सेक्शन। उन्होंने सबसे पहले वहां से स्टार्ट किया करना। आपको यकीन नहीं होगा, एट द एंड 150 में से वो 70 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए, 70-80 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए मालूम है? क्योंकि रीजनिंग सेक्शन ने उनका 1 घंटे ले लिया, ऐसा फंसाया। तो लेट मी टेल यू वन थिंग स्पेसिफिकली, याद रखिएगा इस बात को, सीईटी के लिए, बाकी एग्जाम की बात अलग होगी, अलग तरीके से होगी, सीईटी के लिए लॉजिकल सेक्शन इज नॉट इजी। इसका हिस्ट्री रहा है, या तो वो मॉडरेट रहेगा या डिफिकल्ट होगा। और डिफिकल्ट क्या होगा वो भी बता दूं मैं आपको। डिफिकल्ट वो है जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है। तो आपके हिसाब से मैं आपको क्लियर कर दूं, हमको सबसे ज्यादा मजा आता है इनको सॉल्व करने में, अरेंजमेंट्स। सर अरेंजमेंट बनाने में बहुत मजा आता है ना, पर ये सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला चीज है। और ये लगभग लगभग 15 से 18 क्वेश्चंस हैं। इसको छोड़ भी नहीं सकते हो आप, इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। बट दिस सेक्शन इज कंप्लीटली ऐसा सेक्शन है जो आपको टाइम लेने वाला है। तो इसलिए सर जनरल नॉलेज में 10 मिनट का टाइम दिया है, कि ताकि थोड़ा एक्सेसिव टाइम हम लोग कहाँ बढ़ा ले, रीजनिंग में बढ़ा ले, या फिर वर्बल में बढ़ा ले, या क्वांट में बढ़ा ले, अगर आप 5 ईयर दे रहे हो तो। ठीक है, तो याद रखिएगा लॉजिकल सेक्शन, ये सीईटी का हिस्ट्री है। ये मैं केवल आपको केवल लॉ के लिए एग्जाम की नहीं बता रहा हूँ, मैं एमबीए एग्जाम की तैयारी करवाता हूँ, मैं एमसीए एग्जाम की तैयारी करवाता हूँ। सब में सीईटी जो होता है टफ होता है। और पिछले 2 सालों से ये बैंकिंग वाला सीईटी आ रहा है, बैंकिंग वाला, रीजनिंग वाला, बैंकिंग वाला। हर एग्जाम में एक नए प्रकार का रीजनिंग मिलता है आपको, नया टाइप का। वो कॉन्सेप्ट वही है, बट उन्होंने नए तरीके से पूछ लिया। तो ये कहाँ से आते हैं? डीटीए के पास इतना ना भाई लोग हैं, ना उन लोगों के पास टाइम है। ये लोग केवल और केवल किसी और से आउटसोर्स किए हुए क्वेश्चन हैं। तो हमें उसकी साइकोलॉजी समझना है, इसलिए ये सेशन किया हूं मैंने। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सेक्शन को बहुत स्मार्टली डील करना है। मैं आपको स्पेसिफिकली क्लियर कर रहा हूं कि ये सेक्शन किसी भी हालत में नंबर 1 पे मत उठाना। आखिरी में रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नंबर 1 पे उठा लिया ना यदि, तो आप केवल मुझे आके यही बोलोगे सर मेरे तो 80-90 जेन्युइन अटेम्प्ट हुए, बाकी तुक्के मारे, फिर आप बैठे रहो, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है लॉजिकल रीजनिंग। ये इजी होता है सर, ये बिल्कुल इजी होता है। अगर आपको मैं बोलूं, मैंने 3 भाग में डिवाइड किया, तीन तीन स्पेसिफिक एरियाज हैं, एनालिटिकल, लॉजिकल एंड क्रिटिकल। एनालिटिकल इज टफेस्ट, यू शुड एक्सेप्ट दिस। आपको मजा आएगा, बट ये एग्जाम में नहीं सॉल्व होता है। मैं भी बैठता हूँ, मैं भी एग्जाम देता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील दैट हीट। ठीक है, दिस इज द टफेस्ट, लॉजिकल इज द इजीएस्ट। क्रिटिकल रीजनिंग वाला जो सेक्शन है, ये आप लकी हैं कैट फ्लैट लेवल पे, जो फ्लैट और आईलेट, और अभी हमने रिसेंटली एक एग्जाम देखा एनलेट, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। फ्लैट का तो मतलब मैंने कैट में भी नहीं देखा है। पैसेज बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग, वेरी टफ, टफ इन द सेंस एटलीस्ट एक हाई लेवल पे है। बट सीईटी का अगर आप बात करें, इट इज कंपेरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड, आर्गुमेंट, अजम्पशन, और वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग। श्वेता मैडम के 4 लेक्चर्स हैं, और आई थिंक एक 5वां लेक्चर और भी कहीं है, वो भी नहीं मिलेगा, नहीं तो हम करवाएंगे वो भी उसको। सिर्फ 5 लेक्चर्स का बेसिक्स है। अगर आपने वो कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 4-5 तो भी 3-4 तो मिनिमम बना ही लेने वाले। क्रिटिकल रीजनिंग लगभग 5 से 8 क्वेश्चन के बीच में आपको मिलेगा, और ये सेक्शन में आपको बहुत एफर्ट्स नहीं लेनी है। तो यहाँ पर किस में ज्यादा एफर्ट्स लेनी है? अनडाउटेबली अरेंजमेंट में। सर करना तो है नहीं, फिर क्यों मेहनत करना है भाई? करना जरूरी है। ये आपका लॉजिक भी डेवलप करता है, आपका रीडिंग स्किल्स डेवलप करता है, ये आपको दूसरे टॉपिक में हेल्प करेगा। तो इस पे मेहनत करो, इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, इस पे बहुत ज्यादा मेहनत मत करना सीटी के एग्जाम के लिए। ठीक है, जितना बेसिक करवाया उतना हो गया, बस हो गया, खत्म। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूं लास्ट सेक्शन पे। ये अप्लाई नहीं होगा 5 ईयर वालों के लिए, ओ सॉरी 3 ईयर वालों के लिए, वो है अरिथमेटिक, क्वांटिटेटिव एबिलिटी। नाउ ये देखा गया है कि सीटी, मैंने एमबीए में भी देखा है, बाकी एग्जाम्स में भी देखा है,
लॉ सीईटी में भी हम लोग 3-4 साल से देख ही रहे हैं, और बाकी जगहों पे भी मैंने ये एग्जाम्स देखा है कि ये सेक्शन से सबसे ज्यादा डरते हैं बच्चे, खासकर सीईटी देने वाले बच्चे। ठीक है, तो जब आप डरते हो ना, तो ये उतना ही आसान होता है। बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आप इस सेक्शन को मत करिए, बहुत वास्ट है। ये जो 10 क्वेश्चंस भी आएंगे, अगर 5 ईयर वालों के 10 आएंगे, ये 10 क्वेश्चन हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो में डालेंगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो क्या है वो अपन बाद में देखने वाले हैं, बट ये 10 क्वेश्चन वैसे भी हमको अक्कड़ बक्कड़ में ही डालना है। तो माय सजेशन इज, ये क्वेश्चन में टाइम मत खराब करना, ये सेक्शन को आप लास्ट मिनट के लिए आप स्ट्रेट अवे छोड़ देना अगर आपके सेक्शन में आते हैं तो। ऑल्दो ये इजी होगा, मैं स्किल बोल रहा हूँ, बट अगर आप में से किसी को मजा आता है क्वांट में, आप कर सकते हो, बट मेक श्योर करना 10 क्वेश्चन से 10 मिनट से ज्यादा लगा ना, तो आपने अपने आप को, अपने क्वेश्चन पेपर को बिगाड़ा है। 10 से 11 मिनट में 10 क्वेश्चन होने चाहिए, और ट्रस्ट मी, मान के चलिए, तो 10 क्वेश्चन 10 मिनट वाले ही होते हैं, इजी होते हैं, कोई बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट पे नहीं आता है। जस्ट लाइक आप दूसरे कोई एग्जाम, लाइक अभी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम की जो क्वेश्चन होती है, एक क्वेश्चन में 10 मिनट लग रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। सिंपल ऑप्शंस, सिंपल क्वेश्चन, आपने उठाया, पढ़ा, आगे आंसर। बट मेक श्योर कि अगर आपने पढ़ा है तो, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारे कंपल्सरी जाएंगे लीव में। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको क्लियर किया पूरे जो एग्जाम का पैटर्न है उस पर। Now let us try and understand about 5-year syllabus, then 3-year syllabus जो पिछले साल से रहा है, ये आपको पता ही है, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लीगल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस होते हैं 5 इयर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये आपके लिए लकी है, इसलिए लीगल, अगर आप 5 ईयर वाले स्टूडेंट है, इतना हैवी वेट है भाई, ये स्कोरिंग है। ये सेक्शन आपको कम से कम 30-35 इजी मार्क्स देता है। ठीक है, मिनिमम 30 से अप टू 35 तक, बिकॉज 100% एक्यूरेसी इज इम्प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकली बोलना बहुत मुश्किल है। जनरल नॉलेज आप फिर से लकी हैं, क्योंकि आपको 30 ही क्वेश्चंस हैं कंपेरेटिवली, इट्स ओनली, देखो 20% वेटेज हुआ है। ठीक है, तो जनरल नॉलेज में 30 में से अगर आपने कुछ 12-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 12-15 सही कर लिए, सर रियली गुड स्कोर, 18-20 तक पहुंच गए, मतलब आपने पढ़ाई की है भाई। ठीक है, और अगर 25 से ऊपर 25 तक पहुंच गए, मतलब आपको पेपर मिला था। ये मेरा पर्टिकुलरली मानना है, पेपर ही मिला था आपको भाई, है ना। सीईटी में मिल जाता है, पेपर मिल जाता है, तो वैसा मत करना, हम लोगों को नहीं मिलेगा। हम लोग ईमानदार बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेबस को इसको जाके जा रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश 30 एंड 10। अब इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, मैं इसलिए अभी बता रहा हूं, आप लोगों ने ऑर्डर डिसाइड किया होगा अनडाउटेबली, बट स्टिल आई एम गिविंग यू द ऑर्डर। वो ऑर्डर को आप अपने मॉक्स में फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं अगला सेशन, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे मैं अब सीधे मैं मिलूंगा सीईटी के करीब 1 हफ्ते या 10 दिन पहले, जिस दिन सीईटी का एडमिट कार्ड आएगा उस दिन। ठीक है, क्लैट का एडमिट कार्ड नहीं आया अभी तक, हम लोग उसी पे बैठे हुए हैं। जिस दिन क्लैट का एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो उसके 1 हफ्ते पहले मैं आपको जरूर सेशन करा दूंगा, या 5 दिन पहले, जो भी है। बट वैसे सीटी के लिए भी मैं आपको करवाऊंगा। अब ये ऑर्डर याद रखना हमेशा, पहले नंबर पे, नंबर 1 विल बी योर करंट अफेयर्स। जाते से ही सबसे पहला काम करना, करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। 30 क्वेश्चन है, 40 के लिए आपको 10 मिनट बोला था, 30 क्वेश्चन के लिए 5 से 6 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 5 से 6 मिनट से ज्यादा का टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। इसके बाद लीगल रीजनिंग विल बी योर सेकंड सेक्शन दैट यू विल बी पिकिंग अप। लीगल रीजनिंग, कंपलसरी लीगल रीजनिंग पे जाइए। इसमें 40 क्वेश्चन है, आपका रीडिंग स्पीड अच्छा होना चाहिए। अगेन आपको सॉल्व नहीं करना है, तो भी अगर आप देखेंगे, पैसेजेस होते हैं, थोड़े बड़े प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के आपको आंसर करना पड़ेगा, और थोड़ा तो थिंक करना पड़ेगा एटलीस्ट, एक बार में तो नहीं होंगे। तो इसलिए अपन 40 क्वेश्चन के लिए लगभग थोड़ा टाइम हमको देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है एट मैक्स आपको 30 मिनट्स यहाँ पे देना। जिन्होंने भाई क्लैट की तैयारी की है वो 20 मिनट में करेंगे ये सेक्शन, 20 मिनट में बहुत हो गया, 20 मिनट। जिन्होंने नहीं किए उनके लिए 30 मिनट्स यहाँ पे डिवोट करना पड़ेगा। अब थर्ड सेक्शन इज एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, इंटरचेंजेबल है। 5वें नंबर पे क्या है, ये तो पता है अपने को, 5वां नंबर तो अपने को पता है सर, वो तो भूलो ही मत। 5वां नंबर तो यही है, अपने को कोई टेंशन ही नहीं है। अगर अपन 5 ईयर वाले हैं तो 5 नंबर पे जाएगा।
बट ये जो सेक्शन है ये दोनों ये इंटरचेंजेबल। अगर आपको इंग्लिश अच्छा लगता है तो योर थर्ड सेक्शन विल बी इंग्लिश और फोर्थ विल बी योर लॉजिकल, और अगर आपको लॉजिकल अच्छा लगता है तो थर्ड विल बी यस एंड दिस विल बी फोर्थ। माय सजेशन इज you should go for logical first then English. This is what my understanding. Why? उसका रीजन बताता हूँ। करंट अफेयर्स में पढ़ा, लीगल रीजनिंग में भी पढ़ लिया, इंग्लिश में भी तो पढ़ना ही है, पढ़ पढ़ के बोर हो जाओगे। इसलिए अपने आप को एक पॉज देना जरूरी है। इसका इसलिए सही तरीका होता है कि लॉजिकल आप सॉल्व कर लो, बट उसका टाइम डिसाइड कर लेना पहले। लॉजिकल एट मैक्स मैं बोल रहा हूँ 40 क्वेश्चन है, 40 मिनट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। 40 मिनट्स, ठीक है। इंग्लिश 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, और इतना मिनिमम लगेगा। ये याद रखना, आप ये मत बोलना सर मैं तो इतना लेता हूँ, मतलब फिर आप तुक्के मार रहे हो। तुक्के मारना है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा वो करेंगे। और अब आपके पास कितने बचे? 40, 30, 70, 30, 100, मतलब लगभग 110 मिनट हो चुके हैं। तो 10 मिनट में मैं मैच कर लूं क्या? नो। बाकी 10 मिनट आपको किसके लिए रखना है? लास्ट के 10 मिनट्स किसके लिए रखना है? ये देखिए, सब समझिए इस बात को। यहाँ पर whenever the exam you are appearing where the exam doesn't have negative marking, that means you will be keeping at least 5-minute window for marking remaining questions, जिसको हमने अकड़ बक्कड़ वाले क्वेश्चन बोले थे। तो 5 मिनट का विंडो मिनिमम चाहिए। तो ये 110 मिनट का टाइमिंग मैंने आपको दे दिया, वो 110 नहीं लगेगा, आपको मालूम है, वो एटलीस्ट 110, 112, 113 तक आपका लग ही जाएगा। लास्ट के 5 मिनट अपने वॉच के हिसाब से याद रखना, एक लाइन से सब में अपने को तुक्का मारना है। अभी फिलहाल कैसे तुक्का मारना है वो नहीं बताऊंगा, अभी अपने लॉजिक इस्तेमाल करो मॉक के लिए। आखिरी में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम लोग करेंगे इसका सेशन। तो ये जो लास्ट मैथ्स के क्वेश्चन है, अगर आपके पास टाइम है, अगर इस टाइम को फॉलो किया, ये 105 मिनट्स हुआ। अभी भी आपके पास 5 से 8 मिनट है, तो आपने इसको दे दिया। अगर आपके पास बचा, तो नहीं बचा, ये वाले को इग्नोर कर देना, तो आपके 4 सेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, इस लॉजिक को आपको फॉलो करते हुए चलना है। एग्जाम 150 मार्क्स का है। लास्ट ईयर तक जो था 134 तक भी हाईएस्ट गया था, बट आप 134 पे मत फोकस कीजिए। अगर आपने 110 ले लिया, 120 ले लिया, अपने आप टॉप मोस्ट कॉलेज पे चले जाते हो। ठीक है, सो अवर फोकस विल बी मिनिमम 110, 100। लास्ट ईयर के हिसाब से व्हाट इज अ गुड स्कोर सर? तो उसका मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट 3 years और 5 years। नाउ लेट अस फोकस ऑन 3 year वालों के लिए। लगभग लगभग सिमिलर रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको नहीं है। यहाँ पर चेंज क्या होता है, लेट मी टेल यू वन थिंग। ठीक है, ये देखो, देख रहे हैं आप, इस टफ 1/3 section of 1/3 of your exam is English. Now, this is what they are expecting, that you must know your basic English knowledge. And इस 50 क्वेश्चन में 15 to 18 क्वेश्चन आगे की स्लाइड में मिल जाएंगे आप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना है, स्मार्टली डील करना है। अब लास्ट ईयर के हिसाब से अगर मैं एक रफली बोलूं, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, कंपल्सरी दिस इज योर थर्ड। इसमें आप एक्सचेंज मत करना, और आखिरी सेक्शन होना चाहिए ये, बिकॉज ओनली 30 क्वेश्चन एंड दोज 30 क्वेश्चन लास्ट ईयर वर द टफेस्ट। ऑल्दो लास्ट ईयर इंग्लिश वाज आल्सो टफ पेपर था, बट लॉजिकल वाज आल्सो वेरी वेरी टफ इन द सेंस इट वाज टेकिंग टाइम, इट वाज टेकिंग, आई एम अगेन टेलिंग यू, 2 घंटे की जगह मैं आपको 5 घंटे दूं और बोलूं कि एग्जाम नहीं है आपका, आई एम प्रीटी श्योर एवरीवन जिन्होंने प्रिपरेशन किया वो 130 मार्क्स लाएगा, उससे भी ज्यादा लाए। पॉइंट ये है कि उसको 2 आवर्स में सॉल्व करना है, एंड दैट टू बी 2 आवर्स में, कब? एग्जाम के दिन, और वो भी कोरोना काल में। वो भी एक बड़ा चैलेंज है कि सर हमको वहां जाना पड़ेगा और वहां 10 प्रकार की टेंशन होगी। भाई मेंटली एक बात तो प्रिपेयर हो ही जाओ आप। सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, अभी आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम हुआ था, 3000 बच्चों ने एग्जाम दिया है आपका नागपुर के उसमें। तो एग्जाम्स आर कंडक्टेड और वो प्रॉपर हो रहे हैं। आपको अपने आप को हेल्दी रखना है। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम्स अब और पोस्टपोन होंगे, जितना होना था हो चुका है।
नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट। तो वो अगर मेंटालिटी है कि सर हमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम तो उसके लिए सूट फाइल करेंगे, हम तो लड़ेंगे, अरे भाई इससे कुछ नहीं होने वाला। तो फोकस ओनली ऑन वन थिंग, एग्जाम स्ट्रेटेजी में फोकस करो, एग्जाम दो, अच्छे कॉलेज में जाओ, बड़े वकील बनना, और उसके बाद जमाने भर के इश्यूज है उस पर करते बैठना, ठीक है। ये चीजों पे मत फोकस करो, ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। करंट अफेयर 40 क्वेश्चन, इट शुड नॉट टेक मोर देन 8 to 10 minutes, that is maximum. Legal aptitude 30 question, 20 minutes, 20 to 22 minutes, that's it. English 50 questions, it minimum require 45 to 48 minutes, ठीक है। अब आपके पास कितना टाइम बचा है भाई? लगभग लगभग 40, 70, 80, 80, 85, मतलब 90 मिनट तक हम पहुंच चुके हैं। अब जो बचे हुआ सेक्शन है वो पूरा का पूरा आखिरी में इस पे डिवोट कर दें। 3 ईयर वालों के लिए एक सेपरेट स्ट्रेटेजी में आपको लास्ट में, जब मैं अभी इनिशियली नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी से हमको नहीं जाना है उस पर, अभी हमारा फोकस कंसंट्रेशन कॉन्सेप्ट और टेस्ट देने पे होना चाहिए, टॉपिक टेस्ट। आखिरी वाला जो सेक्शन है इस पे आपको टाइम देना, मैं इसके आखिरी में एक स्ट्रेटेजी आपको एड ऑन करके दूंगा जो 3 ईयर के लिए थोड़ी अलग है 5 ईयर के कंपेरिजन में, और वो टाइमिंग को लेके ही है, बट अभी नहीं, थोड़ा लास्ट में, बाद में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये ऑर्डर फॉलो करो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस ऑर्डर पे चलना, और ऐसे ही मॉक देना, इसको आगे पीछे मत करना। लॉजिकल अगर आपने पहला उठाया ना, आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। मैं 3 ईयर का, लास्ट 3 ईयर्स का मैं आपको लास्ट 2 to 3 ईयर्स का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अभी आपको बताऊंगा 2019 का भी, 2019 का भी, लास्ट ईयर की रीजनिंग कैसा था, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं, यू कीप योर डाउट्स इन फ्रॉम योर सेल्फ, आप मुझे बताइए। लास्ट में मैं आपको अलाउ करूंगा चैट करने के लिए भी और बात करने के लिए भी, दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन आस्क मी, ठीक है। चलो अब एनालिसिस करते हैं पहले 5 ईयर्स के सीटी का। लास्ट ईयर का सीटी कैसा था 5 ईयर्स का? नाउ लिसन, लुक एट द नंबर ऑफ क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। क्रिमिनल लॉ 14 क्वेश्चन, आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। इतने ज्यादा क्रिमिनल पे पूछेंगे, पता नहीं उनको, आपको क्रिमिनल लॉयर ही बनाना था लास्ट ईयर वालों को, इसलिए क्रिमिनल पे ही पूछ डाले 14 क्वेश्चंस। बट जनरली कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट आर द टू टॉपिक्स जो आपको, वे भी 12-11, मतलब लगभग लगभग इक्वल वेटेज है। तो मैंने क्या बोला था, पहले ही बता दिया था कि आपको 3 सेक्शन, क्रिमिनल, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट, ये 3 टॉपिक्स, दैट्स इट, मैक्सिमम वेटेज कवर हो गया आपका। इसके बाद मिसलेनियस में 3 क्वेश्चन थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में हो सकते हैं, आईपीआर से रिलेटेड हो सकते हैं, मिसलेनियस में फैमिली में हो सकते हैं, या और कुछ टाइप के क्वेश्चंस अपने हो सकते हैं। बेनिफर मैम ने बहुत वंडरफुली सारे सेशंस कंडक्ट किए हैं बेसिक से, वेबसाइट में अपलोडेड हैं। हमारे स्टूडेंट्स को हम लोग वो एक्सेस दे ही देंगे, अपलोडेड मिल ही गया है। इसके अलावा आप जो नहीं है वो भी आप ले सकते हैं एक्सेस, वो डिस्कशन करके। बट याद रखिए कि 3 टॉपिक्स अगर आपने ढंग से कर लिए, ये जो लीगल सेक्शन है 30 to 32 लिखा है ना मैंने, आराम से आप मिनिमम 30 से 32 लाएंगे। और अगर इसमें 30 to 32 नहीं आए, 100 नहीं क्रॉस कर पाओगे, ये भी चैलेंज कर रहा हूँ। 100 क्रॉस करने के लिए इसमें 30 लाना पड़ेगा, 30 से 32 मिनिमम, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सेक्शन था, बट थोड़ा सा लेंथ इज अ कंसर्न, तो मैंने उसका सोल्यूशन आपको पहले ही दे दिया। आरसी, आरसी अगर आपने दिन का रोज 3 से 4 आरसी नहीं किया, एग्जाम के दिन आप बिल्कुल परेशान होने वाले। लॉजिकल कर लो, लीगल कर लो, इंग्लिश कर लो, कुछ भी कर लो, आप परेशान होने वाले, क्योंकि रीडिंग ही रीडिंग करना है, और वो भी ऑनलाइन रीडिंग करना है। आपको मैं आज बताऊंगा अपने पोर्टल में कितने टेस्ट हैं, तो वो भी आप ध्यान से देख लेना भाई। इंग्लिश 2 आरसीज थे, इसमें टोटल 13 क्वेश्चन थे, सरप्राइजिंगली 13 ही थे। ये ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 आरसीज भी हो सकते हैं, बट लेंथ 450 500 इज टू मच, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के 3 क्वेश्चन, पैराजम्बल्स के 4 क्वेश्चन, करेक्ट यूजेस फ्रेज वर्ड्स के 2 क्वेश्चन। और ये 5 ईयर वालों के लिए थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है, बिकॉज 5 ईयर वाले बच्चों में ज्यादा हद तक इंग्लिश वैसे भी उनके लिए सब्जेक्ट होता ही है, 10 तक यही होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। इंटेंशनली 3 ईयर्स के लिए क्यों इंग्लिश ज्यादा रखा गया और टफ रखा गया, क्योंकि इंग्लिश वो उनको छोड़े हुए बहुत टाइम हो चुका होता है लैंग्वेज में, इसलिए ये सेक्शन है। तो यहाँ पर भी आप 30 में से 20-22 अच्छा स्कोर कर सकते हैं इजिली। लॉजिकल, यस, दिस इज द थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। और ये देखिए वेटेज, पिछले बार 20 क्वेश्चन, मतलब लगभग 4 सेट्स आए थे, 4 सेट्स,
जिसमें से एज पर द इंफॉर्मेशन जितनी भी बच्चों से बात हुई है, लगभग 2 सेट्स डुएबल थे, वो भी जिन्होंने प्रैक्टिस किया, और 2 जो सेट्स थे, 2 जो थे डुएबल थे और 2 बहुत टफ थे। ठीक है, 2 बहुत ही टफ थे। अब अल्टीमेटली आखिरी में मैं एक आपको बहुत की बात बताऊंगा जो अभी भी मैं बोलता हूं, सबसे क्रूशियल एबिलिटी होता है आपको चूज करते आना चाहिए। हाउ बेस्ट यू आर सिलेक्टिंग क्वेश्चन इज गोइंग टू डिसाइड कि आप कौन सा एग्जाम कितने अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं। ये है एमसीक्यू, ये है आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की सबसे क्रूशियल स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसके बाद लॉजिकल पजल, 5 से 6 क्वेश्चन, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, मिसलेनियस। इनपुट आउटपुट पिछले बार सरप्राइजिंगली एक भी बार नहीं आया था, किसी में भी नहीं आया, 5 ईयर में भी नहीं था और 3 ईयर में भी नहीं था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट डज इट मीन कि अपन नहीं पढ़ेंगे? अरे भाई, जो लॉजिकल वाले सेक्शंस है ना, वो इतने इजी है कि एक एक बार अगर आपने मेरे लेक्चर्स को देख लिया, मेरे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आपको बिल्कुल भी उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ प्रिपरेशन हो जाने वाली, उससे ज्यादा बियॉन्ड जाने की जरूरत ही नहीं। दैट इज मोर देन सफिशिएंट आपके लिए। उतना ही करना है जितने पे उसके बाद टेस्ट दे देना हो। ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 40 में से थोड़ा टफ होता है टाइम अगर अपन दे पाए। बस याद ये रखिएगा कि जितना भी आप टाइम देते हैं उसमें क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। तो अगर आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपको ये ध्यान रखना है कि 20 तो सही होने ही चाहिए। ठीक है, अगर 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो कम से कम 22 से 23 सही होने ही चाहिए। ये आपका स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है और उसके लिए प्रैक्टिस अपनी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। और इसलिए मैंने बोला कि अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में अगर आपको 2 छोड़ना भी पड़ा तो भी चलेगा। ठीक है, तो एक बात समझ आ गया होगा आपको कि 40 की 40 अटेम्प्ट कर सकते हो कि यहाँ आपको 100% अटेम्प्ट करना है लीगल में। इंग्लिश में आप 100% अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, यहाँ 5 से 7 क्वेश्चन छूटेगा। लॉजिकल तो मिनिमम 10 छूटेगा। जहां 40 करने पे गए, जो पिछले साल वालों की गलती हुई है, 40 में ना 1 घंटा लग जाता है। जहां आप 40 करने गए वो यहाँ पर फंस जाओगे इनमें। जहां इनमें फंसे ये टफ में, वहां आपका पेपर स्वाहा। ठीक है, जीएलसी आईएलएस सॉरी, भूल जाइए, आई एम सो सॉरी। याद रहेगी ये बात ना, याद रखना इस बात को भाई। तो 40 में से आपको पता है 10 तो छूटने ही वाले हैं, तो वो 10 क्वेश्चन क्यों ना यहीं के छूट जाएं। ये स्ट्रेटेजी हमको बनानी है और वो धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर पाओगे, स्लोली स्लोली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर का जनरल नॉलेज वाज टफ, ट्रस्ट मी। जिसने लगातार पढ़ा है, लगातार मतलब जो काफी समय से नोट्स बना रहा है, काफी समय से बहुत हद तक प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए करंट अफेयर्स के सेक्शन में थोड़ा स्कोरिंग हो सकता है। स्टैटिक जीके तो भाई आपके इंटरेस्ट में। अब जो आर्ट्स वाले हैं, जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं, उन लोगों ने अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी पहले से अच्छे से करी हुई है, देन फॉर दैम पीपल, फॉर दोज पीपल दिस इज प्रीटी सिंपल। नॉट प्रीटी सिंपल बट स्टिल आई एम सेइंग कि भाई कंप्लीटली मैनेजेबल। बट जिन्होंने बहुत समय से नहीं पढ़ा है, फॉर दोज पीपल इट इज टफ, एब्सोल्युटली टफ। ठीक है, तो सर ऐसी चीज जो हमको पता है बहुत हद तक होने नहीं वाली, तो क्यों ना उसको हम वैसे भी बहुत इग्नोर करें। बस मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, अपनी प्रिपरेशन को ऐसे बाइफोकेट करो। शुभम सर ने वंडरफुली करीब करीब 4 लेक्चर ज्योग्राफी के, 4 हिस्ट्री के और साइंस के, मिसलेनियस के, ऐसे करीब 14-15 लेक्चर होते हैं और 2 लेक्चर मेरे इकोनॉमी पे हैं। ऐसे सब मिला के अगर आप देखेंगे 15-16 लेक्चर होते हैं। रोज एक लेक्चर अपने बढ़िया कान में लगाओ और बैठ के आराम से सुन लो, हल्के फुल्के नोट्स बना लो, उतनी काफी प्रिपरेशन है आपकी स्टैटिक के लिए। अब कोई नया बुक मत उठाना, कोई नई एनसीईआरटी मत करना, नहीं तो आप इसी में डूब जाने वाले। तो सर अब कैसे करें? तो बस इतना ही कर लेना। करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? 6 महीना, लास्ट 6 मंथ के एप्लीकेशन में टेस्ट दिए हुए हैं। हर वीक का एक टेस्ट है, तो हर मंथ के 4, तो टोटल कितने? 24 टेस्ट हो गए। करंट अफेयर्स के अगर आपने टोटल 6 नहीं, 6 महीने क्या हो गए, 8 महीने, अगस्त तक आपको करना है, तो 8 मंथ 4 टेस्ट हर मंथ के, तो 32 टेस्ट हो जाते हैं आपके पास। वो भी अगर आपने कर लिया तो भी करंट अफेयर्स बहुत हद तक हो जाता है। ये याद रखना कि उस टेस्ट को अकेले करने से नहीं काम चलने वाला, एनालाइज भी कर लेना भाई। एंड सर अब बिल्कुल भी हम नया कुछ नोट्स नहीं बनाएंगे, सीईटी पे फोकस कर रहे हैं।
तो अभी आप केवल टेस्ट दो, अपने नॉलेज को टेस्ट करो, जो नहीं पता था उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। डेली का 1 से 2 घंटा अपने को करंट अफेयर्स में डिवोट करना है। पर न्यूज़पेपर, सर अभी का न्यूज़पेपर पढ़ के क्या होगा? क्या होगा सर न्यूज़पेपर पढ़ के, बताइए आप। अभी का न्यूज़पेपर पढ़ के भाई सबसे बड़ा एडवांटेज न्यूज़पेपर पढ़ने का, आपका आरसी इंप्रूव होगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, आपका कॉम्प्रीहेंशन इंप्रूव होगा। तो न्यूज़पेपर को पढ़ना छोड़ना ही मत। भले ही उसका करंट अफेयर कोई काम का नहीं है, बट स्टिल यू शुड रीड कंपलसरी डेली एटलीस्ट 2 आवर, मिनिमम 1.5 आवर आप डेली का डिवोट करिए न्यूज़पेपर में। नोट्स मत बनाइए, बट स्टिल रीड करिए, ज्यादा से ज्यादा एडिटोरियल रीड करिए। देखिएगा आप कई सारी चीजें करंट अफेयर में भी निकाल लोगे उसमें से। अल्टीमेटली बहुत सारी न्यूज़ेस का लिंक होता है प्रीवियस में, वो भी आपको एडवांटेज दे देने वाला है। ठीक है, लास्ट सेक्शन आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि सर ये तो इजी सेक्शन था, फिर हम क्यों छोड़ें। तो छोड़ के देख लेना, करके देख लेना, अगर आपको टाइम, मॉक दोगे। लॉ सीईटी 5 ईयर के 5 मॉक, लॉ सीईटी 3 ईयर के 5 मॉक्स, टोटल 10 मॉक्स आप सबके लिए हैं। तो जो 5 ईयर वाले हैं वो 3 ईयर के मॉक्स पहले देंगे, 3 ईयर वाले 5 ईयर के मॉक्स देंगे। अल्टीमेटली 90% सिलेबस सेम है, तो इससे आपको 10 मॉक का एक्सपोजर होता है। ताकि आप देखेंगे तो आप करके देखना, तो जो जो भाई मॉक दे रहा है उसमें एप्टीट्यूड करके देखना, एक दिन मैथ्स वाला फॉन्ट वगैरह के क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। टाइम लगता है, ठीक है, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस नहीं करी तो टाइम लग ही जाता है। तो इसलिए ये सेक्शन आपको छोड़ना है, क्या टॉपिक आए इसलिए उतना बहुत ज्यादा इसमें डिवोट मत करिए। This is what I feel. 95 to 100. Last year, our topper Anvi got 107 and she has selected ILS. तो 107 में ILS मिला था. She got ILS in, I think in second round. If I'm not wrong, मैं एक बार confirm कर दूंगा. But 107 में ILS आ गया था. चलिए क्विकली एग्जाम का एनालिसिस ये आपके सामने है. इट इज ऑलरेडी, आई हैव मेंशन्ड दिस, लास्ट ईयर के हिसाब से आपका लगभग इंग्लिश में इतना स्कोर होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस में लगभग 21 to 22, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत हायर साइड पे बोल रहा हूँ, स्टिल 20 इज अ रियली डिसेंट इनफ स्कोर. मैथ्स में अगर आप कर रहे हैं तो 5 से 6 वाला आना चाहिए. लीगल, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि इतना स्कोर तक पहुंचाना है अपने को. और लॉजिकल ये भी थोड़ा सा आप मान के चलिए 20-22 तक अगर आप पहुंच गए बहुत होता. तो ये थोड़ा हायर साइड में एनालिसिस दिया हुआ है, बट स्टिल अगर आप ऐड करेंगे तो क्लोज टू 100-105 अगर आप स्कोर कर लेते हैं, दैट मींस यू विल बी गोइंग टू जीएलसी और आईएलएस श्योरली. एंड ट्रस्ट मी, आईएलएस जीएलसी आर रियली रियली गुड. डोंट थिंक कि भाई वो केवल एनएलयूज में जाने से ही सब कुछ होता है. स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आपका लगभग एनालिसिस है, और ये वीडियो मैं आपको वैसे भी शेयर करूंगा एडिट करने के बाद. ठीक है, इसमें से जो पार्ट है वो निकल जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली ये मिलेगा, तो कुछ ऐसा वो करने की जरूरत नहीं है. ध्यान से समझ भर लीजिए. Quickly, I just go through. I'll just take you through league, law CT 3 year. Law CT 3 year, beta comparatively it is a tough paper. पिछले साल का 2019 का जो पेपर था, the toughest paper ever law CT has conducted. I think 2016 या 15 से they have started taking exam. उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि they used to take through the percentage criteria था उसका बस. तो 15 या 16 से they have started taking exam. तो 19 was the toughest exam. तीनों जो स्लॉट्स थे, 3 स्लॉट्स में हुआ था, 36,000 कैंडिडेट अपीयर किए थे. तो तीनों स्लॉट्स में जो लॉ सीटी 3 ईयर हुआ था was the toughest, बिकॉज उसमें इंग्लिश का सेक्शन भी उन्होंने टफ कर दिया. लॉजिकल एज यूजुअल टफ होता ही है, और लीगल का सेक्शन थोड़ा सा लेंथी था, इसीलिए इंटायर पेपर वाज टफ. बट जरूरी नहीं है कि इस साल भी आएगा, पर हमारा प्रिपरेशन ऐसा रहना चाहिए कि भाई हम उसी तरीके से अपनी तैयारी करें. आपको अपडेटेड मॉक्स मिलेंगे, ठीक है, जो अपडेटेड मॉक्स है उसके हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा. जिन्होंने मॉक अपेयर किया था, एक स्टूडेंट हमारा जो था लॉ सीटी 3 ईयर का, he got selected in GLC मुंबई. मैं लास्ट में वो भी बताऊंगा आपको. तो वो लॉ सीटी 3 ईयर वाला बच्चा GLC मुंबई भी गया हुआ है. ठीक है, तो लीगल एप्टीट्यूड वाज प्रीटी मैनेजेबल. 30 में से आपको मिनिमम, जैसे मैंने बोला, 80% स्कोर लीगल में लाना ही है. अपार्ट फ्रॉम, मतलब आप 3 ईयर में हो या 5 ईयर में, डजंट मैटर. ठीक है, तो मिनिमम 80% स्कोर. जनरल नॉलेज वाज सीरियसली टफ. मतलब मेरे हिसाब से अगर आप 18-20 भी ले आए तो
आपने अच्छा किया था, अदरवाइज आपका अक्कड़ बक्कड़ बम पे वो जरूर चला है अगर आपने पढ़ा नहीं था तो। ठीक है, तो ये सेक्शन 40 क्वेश्चन का है, बड़ा वेटेज है। 40 इज अ रियली रियली गुड वेटेज आउट ऑफ 15। 150 मतलब लगभग आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 30% का वेटेज है। 45 होता तो 30% ही हो जाता, समवेयर बिटवीन 25 to 30% का वेटेज है। सो इतना बड़ा वेटेज है, तो आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर स्टैटिक वगैरह अपन अच्छे से कर लें। उसके लिए वीडियोस वगैरह देख लेना आप अच्छे से, शुभम सर के अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। करंट अफेयर्स भी उन्होंने बहुत वंडरफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो वो आपको मिल जाएगा। लीगल जीके भी था यहाँ पर, तो लगभग आप देखो पैटर्न सेम ही चल रहा है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, कोई भी इसमें बहुत बड़ा क्रूशियल डिफरेंस नहीं मिल रहा है जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। इंग्लिश एज आई टोल्ड कि भाई इंग्लिश ने पिछले बार सरप्राइजिंगली सबको प्रॉब्लम में डाल दिया था, वॉज रियली टफ। आज तक का सबसे टफ इंग्लिश था लास्ट ईयर का जो 3 ईयर सीटी पेपर था। उसका रीजन ये देख रहे हो आप, आरसी वाज टू लेंथी, ह्यूज, उसको बहुत बड़ा था। मैं इसका एक फाइनल स्ट्रेटेजी सेशन लूंगा आपका, मैं बार बार इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद से थोड़ा तैयारी स्टार्ट करें। बट 7-8 दिन पहले जब आपको आखिरी के 2-3 मॉक्स बचे होंगे, याद रखना आखिरी में 2-3 मॉक्स बचा के रखना। ऐसा ना हो कि आप पहले ही दे डालो मॉक्स भाई। लास्ट के एक वीक के लिए कम से कम 3 मॉक होने चाहिए। स्टिल हमने 5 नए मॉक्स बनाए हैं, तो वी आर प्लानिंग कि आपको 15 कर दें। ठीक है, तो वो अपडेटेड स्टेज में है, तो 15 आपको हो जाएंगे। 5 5 ईयर के हैं, 5 3 ईयर के और 5 विकल्प की तरफ से, तो इस तरीके से वो हो जाएंगे। बट जो एक्चुअल मॉक्स हैं आपके वो आखिरी में रखना आप, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर ग्रामर, ठीक है, और जो जितना भी सेक्शन था ना, 50 क्वेश्चन होना ही अपने आप में थोड़ा सा पेनफुल है। आउट ऑफ 150 50 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के करना है, ये थोड़ा सा उन्होंने गलत किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये 50 में से 10 क्वेश्चन लीगल पे होने चाहिए थे। दैट कुड बी वन ऑफ द लेवल प्लेइंग थिंग, बट वॉट एवर दे हैव कंडक्टेड, तो भाई वैसा जैसा है अपने को देना ही पड़ेगा। इसके बाद फाइनल सेक्शन वाज लॉजिकल। एज यूजुअल लॉजिकल हर बार की तरह थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, इसलिए इसमें कोई नया बात नहीं है। 20 अगर आपने ले आया तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर है, काफी अच्छा स्कोर है, क्योंकि ये वाला सेक्शन इसमें आपको लगभग इजी मिलेगा। प्रॉब्लम बस इसमें ही होने वाली है, अगेन अरेंजमेंट वाले सेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से पूरा मैंने आपको एक समझाया, ब्रीफ में अंडरस्टैंड किया सेक्शन वाइज क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसा है हर एक सेक्शन के, अलग अलग टॉपिक वाइज हमने वीडियो लेक्चर्स सब कुछ है। जो जो मैंने आपको बताया ना, ऐसा कुछ भी चीज नहीं छूटा है। हमने सारे लेक्चर्स ऑनलाइन कंडक्ट किए पिछले 3 महीनों में, और सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो वो आपको मिलेगा, सब कुछ हम लोग देने वाले। ठीक है, सो आगे में बढ़ते हैं हम। इसमें भी लगभग 95 to 100 का स्कोर होना चाहिए, देन यू कैन मूव, यू कैन रीच टिल व्हाट जीएलसी मुंबई या आईएलएस पुणे तक। सेकंड राउंड इस बार आई डोंट नो हाउ मेनी राउंड्स विल दे विल कंडक्ट। लास्ट ईयर दे हैव कंडक्टेड 3 राउंड्स, 3 राउंड, एंड देन फाइनल एक जो राउंड होता है वो नॉन कैप राउंड होता है। उसमें तो खैर बड़े कॉलेज बचते नहीं है, जीएलसी नॉर्मली पहले या दूसरे राउंड में फेल हो जाता है। तो जीएलसी आईएलएस में आप मान के चलिए सेकंड राउंड तक अगर आप जाओगे, 95 100 भी आया तो आपको पूरे चांसेस बनते हैं। Now these are the colleges. Cutoff is very much subject to thing, but I will be roughly giving you an analysis. अगर इतना आपको पता है कि ये दोनों के लिए लगभग लगभग सेम ही होगा, मैं एक अप्रोक्सीमेट आपको बता रहा हूँ, और मैंने वो कॉलेजेस लिए जो जिसमें दोनों में कॉमन है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो 5 ईयर के लिए हैं, 3 ईयर के लिए नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो 3 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए नहीं है। इतने सारे कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस के नाम मैं भी नहीं बता सकता हूँ आपको। देयर इज अ पावर कट। ओके, एम आई ऑडिबल? प्लीज टेल मी यस और नो। सो इतने कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, हमने मतलब आइडेंटिफाई किया कि भाई इन कॉलेजेस को हम लोग देख सकते हैं। तो इन अ ब्रॉडर स्केल अगर आप समझने की कोशिश करें, जिसमें से अगर आप सीरियसली देख रहे हैं, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आप बाहर मूव कर रहे हैं तो आपके लिए ये 2 कॉलेजेस सब कुछ है, दिस एंड दिस। और अगर आपको नागपुर में ही रखना है तो भी आपके लिए 2 ही कॉलेजेस सब कुछ है, एक ये वाला और एक ये वाला। द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज 4 कॉलेजेस इज फीस। इतनी लो फीस है ना, आसानी से आप मतलब खुद से ही पे कर पाएंगे। सो माय कंसर्न इज, ये टारगेट रखिए
हमारा टारगेट ऐसे कॉलेजेस की तरफ नहीं होना चाहिए जहां पर लेक्चर्स प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं, जहां फीस भी ज्यादा पे करना पड़ रहा है। अब कई बार क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं कि भाई प्रिपरेशन किए बगैर वैसे ही बैठ जाते हैं। सो देयर आर कॉलेजेस विच एक्चुअली नॉन जीरो पे भी ले लेंगे आप, समझ रहे हैं, मतलब 1 मार्क्स भी आए ना तो भी आपको ले लेने वाले हैं, ऐसे भी कॉलेजेस हैं। तो ऐसे कॉलेजेस में जाके आपको पता है क्या होने वाला है, यू विल बी वेस्टिंग योर मनी एंड योर टाइम, योर एफर्ट्स। बट अगर आप सीरियसली करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई अभी जैसे नागपुर में भी दीक्षा भूमि वाले, अंबेडकर में, या आरटीएमएनयू जिसको भी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ही बोला जाता है, ये भी जीएलसी ही है। तो इसमें जाने के लिए भाई आपको लगभग मिनिमम लास्ट ईयर के हिसाब से जनरल कैटेगरी में मिनिमम 75 टू 80 स्कोर चाहिए, कम से कम 75 से 80 स्कोर नहीं आया ये मुश्किल है। उसके बाद अगर आपको जीएलसी चाहिए और आईएलएस चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको 100 का स्कोर चाहिए, ठीक है। अगर 100 स्कोर नहीं आया तो भी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके बाद बाकी के जो कॉलेजेस हैं मुंबई के, वो समवेयर बिटवीन 80 से लेके 100 के बीच में आपको मैक्सिमम लगभग सभी कॉलेजेस मिल जाने वाले। पुणे के जो कॉलेजेस हैं वो आपको लगभग 65 से लेके 85 तक आराम से आपको मिल जाने वाले पुणे के कॉलेजेस। देन उसके बाद नागपुर के कॉलेजेस में अगर आप देखेंगे, इनको इन दोनों को छोड़ के एनी नॉन जीरो स्कोर लाइक वंजारी के लिए, सेंट्रल इंडिया के लिए या रायसोनी के लिए, आपने 10 मार्क्स भी लाया, 20 मार्क्स भी लाया, 30 मार्क्स भी लाया तो भी आपको लगभग लगभग मिल ही जाता है। 3 ईयर के लिए कंपटीशन टफ है, 5 ईयर इज बिट इजी, ठीक है, क्योंकि 5 ईयर में बच्चे ये कॉलेजेस में उतने नहीं जाते हैं, बट तो भी आप मान के चलिएगा ये लगभग लगभग सिचुएशन है, ठीक है। बट स्टिल एग्जिट कट ऑफ डिपेंड करता है, उस पर नहीं फोकस करना है, आपको अपने टारगेट पे फोकस करना है। और टारगेट शुड बी 100। एक बार 100 लाए आप सबके लिए एलिजिबल हो, उसके बाद फॉर्म भरना है कैप राउंड। अभी तो सोचना ही नहीं है ना, जब हम 100 आएगा, 80 आएगा, 120 आएगा, 60 आएगा, 40 आएगा, जो कुछ भी आता है स्कोर, कॉल मी, कॉल मैम, वी विल टेल यू व्हाट विल बी योर ऑर्डर ऑफ फिलिंग अ फॉर्म, दैट्स इट। तो इसके लिए सोचना ही नहीं है कट ऑफ क्या है, किसका क्या है। ये था लास्ट ईयर का, ये 2020 गलत लिखा है। अगर आपका 120 से ऊपर मार्क्स है, नीचे से पढ़ते हुए चलो, सो आपकी रैंक जो थी पहले 250 थी, ठीक है। आपका अगर 112 से 120 है तो लगभग 1000 से 250 के बीच में थी। तो लास्ट ईयर आपको जो कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनको कॉलेज को डीएलसी यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अंडर अगर 1000-1200 रैंक पे भी लाते हैं तो भी आप जीएलसी और उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इसका रैंक मॉडल है, 45,000 इसमें लिखा हुआ है, बट इतने बच्चे नहीं बैठते हैं। एक लगभग लगभग हमने ये एक्सपेक्टेड बताया है कि इस बार का ये हो सकता है। अगर आपको फर्स्ट 250 रैंक में आए तो आपको लगभग 120 का स्कोर करना है, ये टारगेट करना है। इसके बाद तो भाई महाराष्ट्र का कोई कॉलेज बचा ही नहीं, सब में आ गए आप। These are the two wonderful quotes towards strategy. The entire world, the entire, मतलब आप कह लीजिए पूरा fraternity of the context is actually based on the correct strategy. See, the first part is always your planning, that is your preparation. Undoubtedly preparation, which the planning that you are doing it when you are preparing, अगर आपने प्लान और प्रिपेयर बराबर किया है, देन उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग होती है आपकी स्ट्रेटेजी। अगर आपने स्ट्रेटेजीज में सही तरीके से वर्क किया है, आप किसी भी एग्जाम को बराबर क्रैक करेंगे, अनटिल अनलेस वो एनलेट जैसा एग्जाम ना हो जो लास्ट एक हफ्ते में 7 दिन का टाइम दे देते हैं और उस टाइप से दे देते हैं, ऐसा नहीं। अगर एक प्रॉपर एग्जाम है, लाइक क्लैट होने वाला है, लॉ सीटी होने वाला है, तो ये एग्जाम जो होते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एग्जाम है, इनकी पूरा स्ट्रक्चर पैटर्न होता है, सब कुछ होता है, उन एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें अगर आपने स्ट्रैटेजी प्रॉपर किया, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी बनाने में। मेरे हिसाब से ये कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दिया, आपका एग्जाम क्या है। यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर एग्जाम। ऐसा कुछ भी चीज नहीं होना चाहिए कि आपको एग्जाम के बारे में पता नहीं है। जो नया आने वाला है वो तो मेरे को भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। जो पास्ट ईयर में और पिछले 3-4 सालों में आया वो पूरा आपको पता होना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको एग्जाम के बाद ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर माय स्ट्रेंथ एरिया, व्हाट आर माय वीक एरियाज। आई हैव ऑलरेडी मेंशन, अगर आपने लीगल नहीं क्रैक किया, लीगल में आपने अच्छा स्कोर नहीं किया, आपका स्कोर 70-80 भी नहीं क्रॉस करेगा, ठीक है। तो लीगल करना ही करना है, तो स्ट्रेंथ वीकनेस का सवाल ही नहीं उठता, लीगल आपको लेना ही लेना है, लीगल में स्कोर करना है। बचते हुए बाकी के सेक्शन में
हो सकता है कोई वर्नाकुलर बैकग्राउंड से हो, मेरे जैसे हिंदी मीडियम का है, तो उसके लिए इंग्लिश का प्रॉब्लम है. I can't solve sir certain vocabulary question or a grammar question. RC I can do because I am reading. तो मुझे पता है, तो मेरा स्ट्रेंथ एरिया आरसी है, मेरा वीक एरिया ग्रामर है, तो मुझे पता है कि भाई आई विल सॉल्व आरसी फर्स्ट एंड देन वीक एरिया को मैं छोड़ दूंगा या इग्नोर करूंगा या लास्ट में रखूंगा. तो आपको आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है. सेक्शन वाइज हमने बता दिया है आपको. ऐसे ही लॉजिकल में होता है, वैसे ही सब कुछ होता है. एक एक सेक्शन को मैंने बोला करना ही है, एक सेक्शन को इग्नोर करना है. तो 3 ईयर वालों को तो वैसे भी इग्नोर ही है, वो 5 ईयर वालों को मैथ्स को इग्नोर करना है. बचे हुए 3 सेक्शन जो है, जो आपको डिसाइड करना है कि इंग्लिश, लॉजिकल और अपना करंट अफेयर्स. करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है, मैंने उसको भी बाइफरकेट कर दिया आपके लिए. तो इंग्लिश और लॉजिकल में आपको समझना है, वो ही की प्ले करेंगे, क्योंकि वो ही सबके लिए डिफिकल्ट भी होते हैं और वही सब चीजों के लिए मतलब आगे पीछे चलते हैं. लॉजिकल लीगल में तो सभी स्कोर करते हैं और जीके में कोई भी स्कोर नहीं करता. ये दोनों चीजें क्लियर हैं. प्रॉब्लम कहाँ पे हटती है? इंग्लिश और लॉजिकल में जो अच्छा कर गया वो बाजी मार लेता है, वो 100 के ऊपर निकल जाता है. ठीक है. इसके बाद ये बात जो मैं बोल रहा हूं, मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूं, ये याद रखिए बस. रीडिंग एंड उसका कॉम्प्रिहेंशन करना, बेटा ये मैं दुनिया का कोई आदमी आपको नहीं सिखा सकता है. हम आरसीज के सेशन कर सकते हैं. मैम ने एक वंडरफुल सेशन किया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, इंट्रोडक्शन, वो भी अभी आपको मिल जाएगा, वो आप देख लीजिए. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए आपको बहुत सारे आरसीज करने पड़ेंगे, अलग अलग वैरायटी के करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो 4 या 3 आरसीज कैसे आने वाले, लीगल में कौन से पैसेजेस आने वाले हैं, लॉजिकल में कौन से पैसेजेस आने वाले. ठीक है. एंड उसके बाद ये दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, जो आपको टेस्ट और मॉक ही बताएगा. अगर आपने टेस्ट और मॉक नहीं दिए तो आप ये दोनों नहीं कर पाएंगे, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइम मैनेजमेंट. तो ये नहीं कर पाएंगे तो आपका प्रिपरेशन करना या नहीं करना या एग्जाम बैठना सब कुछ ही वेस्ट है. याद रखिए, बैटल अगर आपने पूरी तैयारी से नहीं लड़ा है तो वो पहले ही हार चुके. ठीक है. तैयारी से लड़ो, पूरी ताकत से लड़ो, कुछ मत करो, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग, मैक्सिमम. ठीक है. याद रखिएगा कंपलसरी कि किसी भी हालत में ये दो चीजों के लिए आपको फोकस करना है कि टेस्ट दो तो आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन समझ में आएगा, आपको दिमाग में बैठेगा कि ये मुझे टाइप का बनता है, ये टाइप का नहीं बनता, ये टाइप का मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, ये टाइप को कम टाइम लग रहा है. आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन होगा और ऑटोमेटिकली आपका टाइम मैनेजमेंट होगा. तो इतने सारे टेस्ट आपको प्लेटफॉर्म पे हम लोग देंगे कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बट डेली टेस्ट ही देते रहो, एक एक टेस्ट का हो जाएगा. ठीक है. Madam is requesting to Vidya for sharing her detail. It's a request that Vidya should share her details. ठीक है, because as per the norms आपको share करना पड़ेगा, otherwise we have to remove you from the group. Please share your details, Vidya, to Shweta ma'am या to me. चलो, ये चार्ट दिमाग में बैठा लो, चाहिए तो अभी स्क्रीनशॉट ले लेना आगे, और ये आपको समझ में आ जाएगा. मतलब ये आपको रखना ही है दिमाग में, इस चार्ट को बिल्कुल बैठा लेना. This is what my strategy. If I will be at your place, let's say if I'm starting from today or let's say tomorrow itself, my strategy will be this. I should always start with reading concept before going for a live session. Let's say if you are starting with the fresh, आपको लाइव सेशंस पे जाना पड़ेगा, वीडियो सेशंस पे जाना पड़ेगा. और अगर आप ऑलरेडी पहले ही सेशन कर चुके हैं तो आपको यहां से शुरू करना है. बट अगर आप पहले से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यहां से शुरू करना है. द फर्स्ट थिंग शुड स्टार्ट विथ कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार अपन ने पढ़े. भैया नेटफ्लिक्स का कोई मूवी है क्या कि अपन ने उठाया जो चालू किया पढ़ देखना कॉन्स्टिट्यूशन, एक बार में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन स्वाहा? ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है. यू शुड अंडरस्टैंड. आपको मैं लेक्चर्स क्या एक साथ करवाते हैं कि 12 घंटे का लेक्चर पॉसिबल है? नहीं. शुड अंडरस्टैंड. एक लेक्चर दो, द स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, मैं लेक्चर्स दिखाऊंगा अभी, सब लाइव आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ. एक लेक्चर करो, उसके बारे में पढ़ो. क्या लेक्चर के बारे में? लेट्स से आर्टिकल 1 से लेकर फंडामेंटल राइट्स के बारे में आदित्य सर ने बताया. पहले गूगल पे जाइए, उस कॉन्सेप्ट को ब्रीफली पढ़िए.
अराउंड हाफ एन आवर उस पर डिवोट करिए, उसके बारे में क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज जो भी राइट्स होते हैं आपके, सब पढ़ो। उसके बाद वो वीडियो देखो, उसके बाद उस सेशन पे बैठो। अगर आप सेशन कर रहे हो तो सेशन में बैठना पड़ेगा सेकंड स्टेप में, ठीक है, फंड कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। और अगर आप सीधे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो तो अब यहीं से स्टार्ट करोगे, तो उसके बाद आप वो लाइव सेशन पे जाओ। उसके बाद वीडियो देखो या लाइव सेशन पे जाने के बाद फिर से उस सेशन के नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और नोट्स बनाने के बाद उस पर कंपलसरी क्या करना है आपको, विदाउट एनी फेल टॉपिक टेस्ट उसका देना है। मैक्सिमम के टॉपिक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अगर किसी के स्पेसिफिक टॉपिक टेस्ट नहीं है तो वो गूगल में आपको बहुत से मिल जाएंगे। हमारे शायद कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली ऐसे फंडामेंटल राइट्स है, उस पर टॉपिक टेस्ट नहीं होंगे, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा एग्जैक्टली। बट आपको टॉपिक टेस्ट अगर जैसे बहुत स्पेसिफिक नहीं मिल रहा है तो आप एटलीस्ट गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, या अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट पूरे होने के बाद आप टॉपिक टेस्ट पे जा सकते हैं। तो टॉपिक टेस्ट देना, ये फ्लो चार्ट अगर आपने कहीं भी ब्रेक किया ना तो प्रिपरेशन नहीं होगा। उसके बाद जब टॉपिक टेस्ट सारे हो चुके, आप यहीं पे रुक गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को अपन ने किया, जैसे ही आपके मैक्सिमम मतलब आपका 70% से 75% क्वेश्चन हो चुका है, स्टार्ट विथ मॉक्स। डोंट वेट फॉर 100% सिलेबस। वो 100% सिलेबस 4 साल में भी नहीं कंप्लीट होगा। वाई ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? अरे कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ रहता ही है। जहां आपको दिख गया कि मैं 70% प्रिपरेशन मेरी पहुंच गई है, आई विल स्टार्ट विथ मॉक्स। अब मैंने क्या बोला था कि मैंने 5 ईयर वालों के लिए 3 ईयर वॉक्स भी दिए हुए हैं, 3 ईयर वालों के लिए 5 ईयर वॉक्स भी दिए। तो जो 5 ईयर वाले बच्चे हैं शुरू में 3 ईयर के मॉक्स देना चालू करें। अल्टीमेटली मॉक्स ही होते हैं, मॉक मॉक होता है, एग्जाम वही है, केवल एग्जाम में उन्होंने पैटर्न बदल दिया, दैट्स इट। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आप समझिए। तो पहले 3 ईयर का दो, 5 ईयर वाले, 5 ईयर वाले पहले 3 ईयर का दो, 3 ईयर वाले 5 ईयर का दो। आपको मॉक देने के बाद एक चीज समझ आएगा कि अरे मेरा स्कोर कम आया, मेरा इतना आया। ये सब कुछ आपका डिटेल्ड एनालिसिस में होना चाहिए। यहां आप जब एनालिसिस बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि कौन सी मेरी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, कौन सी नहीं वर्क कर रही है, कौन सी चीजों पे मैं लैग कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। उसके लिए मेरा नंबर हमेशा आपके लिए पास रहेगा। आप जितने कॉल चाहो मुझे करो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। आप केवल मैसेज करो, मैं आपको कॉल में रिप्लाई करूँ कि सर मेरे से ये वर्क नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा, जो भी है हम लोग बात करेंगे। बट आप अगर बोलोगे कि सर मेरे को मॉक मॉक ही नहीं दिया मैंने, या मैंने टेस्ट ही नहीं दिया, या वो नहीं किया, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं उन्हीं के लिए मेहनत करूंगा जो खुद के लिए मेहनत करते हैं, अदरवाइज मैं मेहनत नहीं करूंगा। एज सिंपल एज दैट, लॉजिक बहुत क्लियर है। आप मेरे को फोन करो, सर मैंने ये मॉक दिया, मैंने 2 मॉक दिया, मैंने 3 दिया, मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, बताओ, अपन डिस्कस करेंगे, इसका बहुत अच्छा टॉक करेंगे। एंड जैसा मैंने बोला, आखिरी हफ्ते में हम एक सेशन करेंगे, उसमें आपको फाइनल स्ट्रेटेजी बनानी है लास्ट वीक। और वो फाइनल स्ट्रेटेजी कम से कम 3 मॉक में अप्लाई करना है। तो लेट्स से 25 अक्टूबर को एक डेट रफली मैंने बता दिया, 25 अक्टूबर आपका सीईटी है, तो 18 अक्टूबर को हम लोग ने अगर ये सेशन किया, तो 18 से 19 से लेकर 25 तक ऑल्टरनेटिवली आपको 3 मॉक्स देने हैं, और उसमें वो फाइनल स्ट्रेटेजी अपनाना है, और वो फाइनल स्ट्रेटेजी में को आपको कंटिन्यू करना है अपने फाइनल्स के लिए, ठीक है। और ये जो फाइनल स्ट्रेटेजी है ना, इसका मतलब होता है ये आपको एग्जाम में कैरी फॉरवर्ड करना है। ऐसा सुबह सुबह उठे करके और चल दिए अपन एग्जाम में, क्या होगा? क्या लगता है आप कुछ सोच लीजिए। आपको डिसाइड करना है कि आपको आपको कौन से कॉलेज में जाना है। तो अगर आपने फाइनल स्ट्रेटेजी अपनी बनाई है, आप वो स्ट्रेटेजी लेके जाइए, मैं आपको बोल रहा हूँ वर्क करेगी, श्योरली वर्क करेगी। आज तक किया है, लोगों के लिए किया है। कभी कभी किसी को 19 20 होता है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड है बेटा। मोदी जी ने 3 महीने लॉकडाउन लगाया, आपको प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया खुला, अब जाओ। तो आप अब हर एंगल से प्रिपेयर हैं। लॉकडाउन का सिचुएशन भी देख लिया, अब पिछले 3 महीनों से अपन इधर से उधर घूम रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, कुछ नहीं दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एग्जाम भी होगा। डोंट वरी कि एग्जाम नहीं होगा या कुछ होगा, एग्जाम तो होना ही होना है। सुप्रीम कोर्ट को 1000 बार इन लोगों ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा क्लियर कर दिया कि भैया बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़ेगा। और यहाँ सीईटी में आप मान के चलो एडमिशन कैसे लोगे? 36-40 हजार बच्चे हैं और सीट्स करीब 9000 है 3 ईयर वालों के लिए। 20,000 से ज्यादा एप्लीकेशन है 5 ईयर के लिए, सीट्स 9000 करीब।
8,000 करीब सीट्स, कैसे एडमिशन होगा बताइए? देयर इज नो पॉसिबिलिटी। तो एग्जाम होना है, मेंटली प्रिपेयर कर लो, देना है, दैट्स इट। और जिनको इस साल नहीं देना वो तो खुशी मनाओ, आराम करो, कोई दिक्कत ही नहीं। याद रहेगी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कंपलसरी। जल्दी बोलो यस और नो, रिप्लाई करो यार, मुझे को भी इंटरेक्टिव बनाओ। एक तो सर बोलना आपने बंद कर दिया हमको, ठीक है, बोलने नहीं दे रहे हो। फंडामेंटल राइट है हमारा बोलने का। वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री एंड स्टिल यू आर स्टॉपिंग अस टू से यस और नो, बट ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनल तरफ, उसके तरफ हम लोग। अब मैं आपको पोर्टल शो कर रहा हूं हमारा विकल्प एजुकेशन का। सब कंसंट्रेट करेंगे, जिनको थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होता है मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट और अच्छे से कंसंट्रेट कर लेना कि क्या करना है आपको फ्यूचर के लिए, ठीक है, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। नाउ आई विल बी शेयरिंग विकल्प एजुकेशन का पूरा एंटायर पोर्टल, बोथ टेस्ट के लिए भी और सब कुछ उसमें भी। लेट अस बिगिन विद वेबसाइट, ठीक है। भाई बहुत मेहनत किया है अभी वेबसाइट में, आपको मालूम है कि हमारा इतना अच्छा वेबसाइट नहीं था। थोड़ा एक बार जाओ और देखो, और इसमें कुछ एरर्स रहेंगे तो मेरे को जरूर सजेशन देना। आई रियली लव कि आप कुछ इसमें से बताएंगे। ओके सो अब सबसे पहला काम, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, द फर्स्ट थिंग दैट दे नीड टू डू इज लॉग इन। यहाँ से जाके जितने भी लोग बैठे हैं लॉग इन करिए। लॉग इन करने के बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा। लॉग इन आपका मोबाइल नंबर होगा, उसके बाद आपको एक यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, एंड देन उसके बाद आपको पता है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, थैंक यू श्वेता मैम। लॉग इन कैसे कर लोगे भाई जब तक यूजर नेम पासवर्ड ही नहीं है? साइन अप करना पड़ेगा पहले। पहले साइन अप करो, जिसके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है तो वो साइन अप करेगा। एक बात मैं क्लियर करूं, ये एप्लीकेशन का नहीं है, दिस इज अवर वेबसाइट, दिस इज डिफरेंट प्लेटफॉर्म। वीडियो यहाँ पर है, हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स जो है वो यहाँ पर है। तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करके आपको यूजर नेम पासवर्ड आएगा। जैसे ही आपका यूजर नेम पासवर्ड आ जाता है, मोबाइल नंबर विल बी यूजर नेम पासवर्ड जो आपने रखा है वो, तो तुरंत आप श्वेता मैम को मैसेज कीजिए। विद इन 18 टू 24 आवर्स उसको हमको लॉग इन एक्टिवेट करने में टाइम लगता है, तो वो एक्टिवेट होगा। हर किसी को उसको एक्सेस नहीं मिलेगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को एक्सेस मिलेगा, ठीक है। वंस आपने लॉग इन कर साइन अप कर लिया और सब कुछ हो गया, इसके बाद आप चले जाएंगे अकाउंट्स में। ये रहा अल्ताफ अली, हमारे जो आईटी पर्सन है, उनका ये यूजर नेम पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। यहाँ पर आपको माय लर्निंग टैब में जाना। देखो पहले तो आप ध्यान रखिए, हमारे 3 बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजुकेशन एकेडमी एंड कैंपस टू कॉर्पोरेट। तो अभी एकेडमी के अंडर में आपको जाना है, क्योंकि लॉ वगैरह वहां देखते हैं। एकेडमी में सारा कंटेंट है आपके लिए, अगर आपको किसी भी एग्जाम के बारे में नॉलेज चाहिए वो यहाँ मिल जाने वाला है आपको, ठीक है। क्लैट, आईलेट वगैरह व्हाटएवर जो भी आपको डिटेल चाहिए, उसमें अगर कुछ अपडेशंस नहीं होंगे तो हमको जरूर बता देना, बाकी वो आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। बट वीडियो लेक्चर्स के लिए कहाँ आना है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। ये किसको, जिन्होंने हमारे यहाँ लॉग इन किया हुआ है और जिनको लॉग इन और यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद हमने एक्सेस दे दिया है उनको। अब जैसे ही आप माय लर्निंग में जाएंगे ना, सबको ऐसे 2 टैब दिखते हैं, ऑल्दो अगर आपने स्टार्ट किया है कि नहीं। बट इसके बाद अगर आपको हमने एक्सेस नहीं दिया है तो यहीं पे आप रुक जाएंगे। आपको क्या करना है, विकल्प एकेडमी में जाना है। इधर देखो, एजुकेशन एंड एकेडमी, एकेडमी में जाना है। जैसे ही आप एकेडमी में जाएंगे, ये रहे आपके सारे लेक्चर्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। कुछ लेक्चर्स बाकी हैं यहाँ पर अपलोड होना, 85% लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। नेक्स्ट फ्यू डेज में वो सारे अपलोड हो जाएंगे। नाउ जैसे हमने हमारे जो 21 पैट के बच्चे हैं, उनके लिए हमने असाइनमेंट दिया था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो ये रहे सारे कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स बाय मिस्टर आदित्य कृष्णा। ट्रस्ट मी, ऑल्दो सारे लेक्चर्स मैंने भी बैठे हैं उसके, ठीक है। ऑल्दो आई एम नॉट अ लीगल पर्सन, बट द वे ही हैज अप्रोच्ड द टॉपिक इज वेरी वेरी गुड। वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा इंटेलेक्चुअल रहेगा। बट अगर आपने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आप पहली बार में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो देन मैं या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। दिस इज वेरी टेक्निकल, ठीक है। आर्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, पता नहीं कितने प्रकार की चीजें होती हैं। तो इतनी सारी चीजों के लिए हमने 2 पीडीएफ्स हैं हमारे पास, वो मैं आपको दे दूंगा। आपको जो कंटेंट है वो ले लेना। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया, गूगल पे जाइए और वो सर्च कीजिए, ठीक है। ये जो पहले 2 लेक्चर्स हैं, ये तो केवल अप्रोच वाले, यहाँ से आपके लेक्चर चालू हुए हैं।
प्रियम्बल पार्ट 1, आदित्य कृष्णा ये प्रियम्बल लेक्चर 1, लेक्चर 2, ऐसा करते हुए आपके पास पूरे नीचे तक आप जाओगे। टोटल 11 लेक्चर्स हैं विच इज सिंक्रोनाइज्ड टू द मिनिमम टाइम लिमिट तक। तो 11 लेक्चर का मैक्सिमम टाइम लिमिट 10 घंटे ही होगा। ठीक है, सब कुछ इसमें कवर है जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। याद रखिए मोर देन मतलब करीब करीब 400 के आसपास आर्टिकल्स हैं। एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता पर 400 आर्टिकल्स होंगे। तो 400 आर्टिकल्स का आपको एक एक आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन ना पढ़ना ना कुछ करना। जब आप लॉयर बनेंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम इररेलेवेंट है जिसका बहुत कम काम होता है। तो उन लॉ आर्टिकल्स को नहीं करना। तो इन्होंने जो आर्टिकल्स डिस्क्राइब किए हैं वो बहुत क्रूशल है आपके नॉलेज और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद ये वाला पूरा सेक्शन करने के बाद दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेनिफो मैम के लेक्चर्स भी बहुत अच्छे से होते हैं। शी हैज रियली गुड स्किल्स ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स। तो आपको पता ही होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के पूरे नए लेक्चर्स हैं ये, अभी अभी जो मैम ने नए लिए हैं विद पीपीटी के साथ। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर फैमिली हो गया, फिर फैमिली के 2 हैं, उसके बाद फैमिली के बाद लीगल मैगजीन भी है और क्रिमिनल है। अभी इसमें टॉट बाकी है और 1-2 और टॉपिक्स बाकी है। तो वो आपको आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में मतलब स्लोली स्लोली ऐड हो ही जाएंगे। मतलब 10-12 दिन का टाइम उसमें लगेगा क्योंकि वो सेशंस अभी हमारे रिकॉर्डेड नहीं है, तो वो हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसके बाद critical reasoning. Now let me tell you, critical reasoning is consisting of 2 types of critical reasoning. First is sentence based, ठीक है, जो स्टेटमेंट बेस्ड होता है। तो जो श्वेता मैम के लेक्चर्स दिख रहे हैं आपका आर्गुमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन एंड कंक्लूजन, बस इतना ही सीईटी के लिए काम का है। इससे बियॉन्ड नहीं है, इसके बियॉन्ड बिल्कुल भी नहीं। तो आप इससे बियॉन्ड जाना भी मत, है ना। जिनको क्लैट करना है उनके लिए हमने स्पेशली आदित्य मैम जो एनयूजीएस कोलकाता वाली हैं उनके पूरे पैसेज बेस्ड करवाए हैं। ये देखिए सारे 9 लेक्चर्स हैं। एंड क्लैट वाले बच्चों को मैं स्पेशली बोल रहा हूं जिन्होंने क्लैट का कोर्स ज्वाइन किया है और जो पैसेज बेस्ड करना चाहते हैं, ये एक बार लेक्चर रिवाइज कर लेना भाई, पूरा आपका सब कुछ हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक लेक्चर है मैम का और इस पे सेक्शन है, जो लेक्चर्स है वो ऐड हो जाएंगे। ये इंट्रोडक्शन है कैसे अप्रोच करना है। इसके बाद शुभम सर के पूरे जीके, पहले स्टार्टिंग में स्टैटिक है, पहले मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देख लेते हैं। मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स जो है जिसमें मैंने स्टार्ट से किया था हाउ टू रीड न्यूज़पेपर से, और इकोनॉमी पे लेक्चर्स हैं, एंड देन मैंने कुछ 1-2 सेशंस और लिए थे। तो ये सेशंस आप चाहें तो बाद में रख सकते हैं। रीजन भी इनमें मैंने जनरली वीकली ही डिस्कशन किया है। ठीक है, बट जो शुभम सर के लेक्चर्स हैं ये वाले, ये देखिए मिसलेनियस के 3, ज्योग्राफी के 3, हिस्ट्री के 4, देन साइंस के 2, ये हो गए आपका स्टैटिक, ये हो गया पूरा करंट अफेयर्स। कहां से? जनवरी से स्टार्ट किया है। बाकी के हमने अपलोड नहीं किए हैं। आप चाहिए अगर आपका ये हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा, उसका सेपरेट लिंक हम दे देंगे, वो वेबसाइट पे नहीं आएंगे क्योंकि हम जनवरी ऑनवर्ड्स ही यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। एक बार आपका जनवरी टू ये हो जाएगा तो आप मुझे बोल देना, तो मैं आपको लास्ट ईयर के 6 महीने के आपको मैं अलग से लिंक दे दूंगा। इसके बाद आखिरी में जो कंपलसरी आपको जो 2 सेक्शन है जिसमें बहुत मेहनत करना, वो है लॉजिकल, पूरे अच्छे से कर लेना स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। ठीक है, पजल, ब्लड रिलेशन, ये अभी ऑर्डर में नहीं जमे हैं, ये ऑर्डर में जम के दिखेंगे आपको। जो हमारे शीट का है, वर्कशीट का ऑर्डर है, वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। सारे लेक्चर्स बाय मी है। ठीक है, और ये लेक्चर वर्बल एबिलिटी के, ये अगर आपने पूरे लेक्चर्स कर लिए तो आपको लॉजिकल और वर्बल में मैं बोल रहा हूँ उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा, इतना मैं अश्योर कर रहा हूँ। वही सब कुछ कैप्चर करके आपका पूरा का पूरा सेक्शन आपको दे देने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे आपके कुछ टॉपिक्स वाइज सारे हो गए हैं। केवल लीगल में ये 1-2 जो टॉपिक्स हैं वो भी बहुत सिंपल हैं, ऐसा कुछ उसमें वो नहीं है, बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये क्वांट का सेक्शन भैया मत करना, कोई जरूरत नहीं है ना, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वांट में भी ज्यादा फोकस मत करो, ये कैलकुलेशन टेक्निक्स पे है। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेशन चाह रहे हैं अपना इंप्रूव करना तो यू कैन डू, बट वो आपके टाइम के लिए ही करना है, उसमें मत डिवोट करना। ठीक है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, लीगल रीजनिंग एंड लीगल नॉलेज। सबसे पहले लीगल को शुरू करने के लिए आप लोग
अदिति मैम का ये वाला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, ये कहाँ पर है, लीगल रीजनिंग वाले टैब में। अदिति मैम का ये लेक्चर जरूर आप सुन लेना, ठीक है। इसमें अदिति मैम ने काफी हद तक एक्सप्लेन किया है कि सारे प्रकार के लॉ के लिए, ये देखिए, he has explained wonderfully by the story, जितने भी प्रकार के लॉ के आपके टॉपिक्स हो सकते हैं उनको उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये सब आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये 2 लेक्चर्स मैम ने और लिए हैं बेस्ड ऑन लीगल नॉलेज, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो ये टैब में, इसके बियॉन्ड अगर आपको और भी कुछ डाउट्स होता है तो आप पूछिए, बट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया यार, ठीक है। आप भी समझिए, हमारी भी एफर्ट्स, ऐसा ना हो कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में और बार बार फोन कर करके पूछ रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए भी। बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपको प्लानर बता दिया, इसका वीडियो में दूंगा आपको, ये वीडियो देख लो, और वीडियो देखने के बाद भी ऐसा बहुत जरूरी चीज नहीं है, यू शुड अंडरस्टैंड कंपलसरी, कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई कैसे इसको अपने को डील करना है। उसके बाद भी अगर कुछ क्वेरीज रहती हैं यू कैन आस्क, बट एक लिमिट है हमारा, ठीक है। आपको भी थोड़ी अपनी तरफ से एफर्ट्स लेनी पड़ेंगी, अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये पूरा वीडियो लेक्चर्स का मैंने आपको एनालिसिस दे दिया। इसके बाद आता है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। इसका यूआरएल एक आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस के लिए विकल्प एजुकेशन का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट कैन यू कैन डाउनलोड स्ट्रेट अवे, उसका एक्सेस हम आपको दे देंगे, तो फ्री है, मान के चलिए आपको हमको मिल ही जाएगा विकल्प एजुकेशन का, दैट इज अ सेपरेट थिंग, उसका कुछ दिक्कत नहीं है ज्यादा, उसमें कुछ यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, वो डाउनलोड कर लोगे तो आपको बहुत सारे लॉजिकल के, इंग्लिश के और बहुत सारे कुछ कुछ टेस्ट आपको मिल जाएंगे। बट जो पेड कैंडिडेट्स हैं उसके लिए हमने टीसीवाई का मटेरियल आउटसोर्स किया हुआ है, तो टीसीवाई के हमारे पास जो टेस्ट हैं, ये निकिता का हमने यहाँ पे खोल के रखा है, निकिता इज आवर 3 ईयर स्टूडेंट, तो आपको वही बताना चाह रहा हूं मैं कि ये आपको असाइन किए जाते हैं टेस्ट, इसमें सब कुछ होता है, तो वो कौन कौन से होंगे मैं बताऊंगा, बट इसमें आप याद रखिए कि आपको यूजर नेम पासवर्ड के लिए डिटेल्स पहुंचानी पड़ती है, तो उस यूजर नेम पासवर्ड की डिटेल से आप दोनों तरह से, मोबाइल पे भी या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी, आप कहीं पे भी टेस्ट दे सकते हैं, दोनों का सर्वर उनका सेम है। आप अगर एक टेस्ट लैपटॉप पे देते हैं और एक मोबाइल पे देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट चला जाएगा, वो दोनों जगह पे ही अपडेट होता है, तो आपको आसानी से आप कंफर्टेबली दे सकते हैं। मैं बिफोर भूल जाऊं, मैं क्लियर कर दूं आपको, मॉक और जो बड़े टेस्ट होते हैं मोर देन 60 मिनट वाले, कम से कम आप हमेशा याद रखिए, मॉक तो कंपलसरी किसी भी हालत में, भले ही आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है तो भी अरेंज करो, खरीदो मत, अरेंज करो, और मॉक कंपलसरी आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही देना है, कमरा बंद करके टाइम स्लॉट लगा के पूरा 2 घंटे में देके। अगर मॉक आपने मोबाइल पे दिया तो उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ उतना अच्छा प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग बैठेगा ही नहीं। टेस्ट आप दे सकते हो चलते फिरते, 20 मिनट का टेस्ट है, 30 मिनट का टेस्ट है, वो दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम टाइप करना है वो मैम आपको बता देंगे, जो पेड बच्चे हैं ऑलरेडी जिन्होंने कर लिया उनको मिल चुका होगा, और जिन उसको आपको लैपटॉप में कैसे खोलना है तो उसके लिए ये यूआरएल सामने दिख रही है, ये देख लो, वो भी मैडम आपको भेजी देंगी, उसमें भी कोई बात नहीं है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये रही यूआरएल, ये यूआरएल होती है विकल्प academy.tcyonline.com, तो ये हमारा यूआरएल है, यहाँ आप इसको आप उसको पुट करोगे, लॉगिन के लिए बोलेगा, लॉगिन और यूजर नेम पासवर्ड आपको ऑलरेडी मैडम ने मैसेज किया करेंगे, उसको याद रख लेना, उसको कहीं लिख लेना प्लीज। आप समझिए, वी आर नॉट वर्किंग विद फुल कैपेसिटी एट प्रेजेंट, आप जानते हैं कोरोना ने बहुत चीजें बदली हैं, ठीक है, हम 100% एम्प्लॉय की कैपेसिटी से नहीं वर्क कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, तो सब कुछ अभी हमको ही मैनेज करना पड़ रहा है। आप समझिए, अगर मेरी एफर्ट्स और मैम की एफर्ट्स अगर इन सब चीजों पे जाने लगेगी तो आपके लिए टाइम नहीं दे पाएंगे लेक्चर्स के लिए, तो भाई मैं इतना ही बोलूंगा, यूजर नेम पासवर्ड कहीं लिख के रख लो, वो चेंज नहीं होता, हम चेंज नहीं करते हैं, वो आपको कहीं लिख लेना है, वो यूजर नेम पासवर्ड आपका मोबाइल ऐप में भी खुलेगा और वही लैपटॉप डेस्कटॉप में भी खुलेगा, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, इतना समझो यार, इतना आईक्यू अपना डेवलप करो, नहीं तो पता नहीं कैसे करोगे आने वाले समय पे, आई डोंट नो। इसके बाद आपको मैं बता दूं, देख लो, ये सब कुछ देख लो भैया, बहुत क्लियरली देख लेना, देखो कितने टेस्ट हैं ऑनलाइन टेस्ट में, अरे हाँ,
ऑनलाइन टेस्ट के सेक्शन में इतने सारे टेस्ट हैं आपको मिलते हैं, अगर आपने दिए होंगे तो आपके चले गए होंगे। मेरा सजेशन ये है, अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी पहले से चल रही है और आपको केवल मॉक देना है, तो ये जो बचे हुए मॉक हैं जैसे DU LLB 3 ईयर, PU LLB, ये सारे टेस्ट भी दे डालो ना भाई। और भी हैं, और भी हैं, देखो ये तो क्लैट के हैं, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट दे डालो, ये टेस्ट क्यों छोड़ना है, इनको भी बिल्कुल दे डालो। अब DU LLB वाले, PU LLB वाले, ये सब दे डालो। और अगर आपने सिम्बोसिस नहीं दिया, ये भी दे डालो। ये सारे टेस्ट क्या होंगे ना, अल्टीमेटली आपको प्लेटफॉर्म से कन्वो करवाएंगे, बैठने की आदत डलवाएंगे, आपके आई कांटेक्ट को मतलब ब्रॉडर बनाएंगे, आपको समझ में आएगा। एक एक दो एग्जाम देने के बाद आपको लगेगा अरे ये कितना कितना मतलब डिफिकल्ट हो रहा है कॉम्प्रीहेंड करना, क्योंकि जब आप लैपटॉप में बैठते हो बहुत देर तक, बहुत टाइम लगता है। इनिशियली आपको कंफर्टेबल होने के लिए ये वाले मॉक को एक्सपेरिमेंट करो। ये एग्जाम तो भरे ही नहीं है हमने, ये मॉक हमने फ्री में दिए हैं, आपको कर लो, दिक्कत क्या है। उसके बाद जब आपकी तैयारी हो चुकी है, तब 5 ईयर और 3 ईयर से स्टार्ट करो। जो 5 ईयर वाले बच्चे मैंने क्लियर किया, आपको 3 ईयर पे जाना है, 3 ईयर वाले 5 ईयर पे जाना है। इसमें आप अगर क्लिक करेंगे, देख लीजिए 5 मॉक्स हैं आपके 5 ईयर के, 5 मॉक्स हैं आपके 3 ईयर्स के। आईलेट के मॉक्स हैं, आईलेट के मॉक थोड़े टफ होते हैं, इसलिए अगर नहीं भरा है एग्जाम तो उसको छोड़ दो, मत देना, नहीं तो फालतू में आपका दिक्कत होगा। हाँ, अगर आपने सिम्बोसिस नहीं दिया, तो सिम्बोसिस जा चुका, उसके भी 5 मॉक्स हैं, तो 5 इसके, 5 DU LLB के 10 हैं, PU LLB के 2 हैं, 10 और 2 12, और ये 5 17 मॉक्स तो आपके खेल कूद के लिए ही है। इसको आप देख लो, अपना पोर्टल अपना मतलब आराम से, यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई मेरे को समझ में आना चाहिए पोर्टल। भाई जिन्होंने केवल CET भरा, वो क्लैट का मत देना और आईलेट का मत देना, नहीं तो आप ही जानो, वो अपने रिस्क पे दे देना, मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। उसके बाद आपको पता है जी क्या होगा, क्लैट और आईलेट अगर दे दोगे तो आपको पता है भाई वो अलग ही एग्जाम्स। इसके बाद देखो टॉपिक वाइज, ये देखो इंग्लिश, एलिमेंट्री मैथ, लॉजिकल, लीगल, जनरल, वीकली जीके। सबसे पहले वीकली बता देता हूं मैं। ये देखो जीके कहाँ से लेके कहाँ तक है, पूरे 1 साल का, फेब्रवरी तक से है, और इसमें आगे का भी होगा, मैं असाइन करवा दूंगा आपको, या जो भी होगा नहीं तो मैं बता दूंगा, जनवरी तक तो मैं आपको पूरा अपडेट करवा दूंगा। नहीं है तो अपडेटेड ही है, सॉरी 2019 से है, देख लो आप। हर एक वीक में कितने टेस्ट होते हैं, 4, ये देखो अगस्त के 4 अपडेटेड। अब इसमें 20 मिनट लगाए सर आपने तो बोला था कि इसको वो उसमें करो, अपन 4-5 मिनट में खत्म करने की आदत डालो। 20 क्वेश्चन मतलब 4 मिनट्स, 4 मिनट में खत्म होना चाहिए। शुरुआत में हो सकता है 8 मिनट लगे आपको, उसको 10 मिनट लगे, तो अपने को 20 मिनट तक नहीं जाना है, सोचते नहीं बैठना है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखो भाई, हम आपके मॉक का स्कोर जरूर देखते हैं, और अगर अच्छा मॉक का आता है, अच्छा टेस्ट का स्कोर आता है, तो हम कुछ भी होते हैं। बट अगर आप अपने आप को धोखा देके टेस्ट को इधर उधर से आंसर कर रहे हो, तो यार आप भी जानते हो क्या होगा उससे, मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला है ना, आपको कुछ फायदा होने वाला है। तो इतना सब कुछ है, वीकली जीके, जनरल अवेयरनेस के लिए पूरा। यहाँ पर देखो, ये रहा स्टैटिक। इतने अगर टेस्ट दे दिए ना आपने, मैं अश्योर कर रहा हूँ, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडिया पॉलिटी, इकोनॉमी, इतने टेस्ट दे दिए ना, खत्म हो गया आपका। इसके बाद आपको स्टैटिक पे जाने की जरूरत नहीं है। लीगल रीजनिंग में ये रहे पूरे टॉपिक वाइज, इनको सबको दे डालो। लॉजिकल रीजनिंग ये देख लो सारे। एलिमेंट्री मैथ तो देना ही नहीं है अपने को, छोड़ दो अभी फिलहाल। इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये तो इतने सारे आपके सामने टेस्ट है टॉपिक वाइज, जो आपको देना है। और इसके बाद असाइन टेस्ट जो होते हैं, वो हमारे टेस्ट होते हैं, तो हमारे टेस्ट में हम लोग असाइन करते हैं इसको, वो सारे टेस्ट हम आपको करके देंगे, ठीक है। इसमें देखो हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं CET के, वो इसमें नहीं है, मैं बता दूंगा, वो उसमें है। CET के 5 टेस्ट है, वो हम लोग इसमें आपको अपडेट करके दे देंगे, ठीक है। तो 5 टेस्ट हमारे बने हुए हैं, 5 इनके हैं, और 5 ऐसे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल ये है, यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको, पूरा टेस्ट हिस्ट्री, आपके कितने टेस्ट दिए हैं, कितने नहीं दिए हैं, साइन भी होगा। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंटली जो इसमें फीचर अभी ऐड हुआ है, हमारे पास नहीं था पहले, वो था असाइंड PPT का। अब आपको अगर कोई लेक्चर के का और कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये देखो आपको ऐसे पूरे मिल जाएंगी PPT। 5-5 PPT ही हम लोग डाल सकते हैं, तो इसलिए 5-5 ही दिख रहे हैं आपको असाइन PPT वाले सेक्शन में। तो जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने ओपन किया, देखो इनका बेसिक बेसिक उन्होंने बताया है, आपने इतने भी नोट्स बना लिए ना, तो भी काफी हद तक आपका सेक्शन कवर हो जाता है। वैसे ये 5 हो गए।
जैसे ये 5 पीपीटी हो गए, आप श्वेता मैम को मैसेज करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली बाकी की 5 पीपीटी और आगे की पीपीटी जो है वो हम लोग असाइन कर देंगे। इस तरीके से आपके पास सारा कंटेंट अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स हैं, आपके पास पीडीएफ्स हैं, ये एकेडमी के ये जो टेस्ट हैं, साइन पीपीटीज है, हम लोग आपको कंटेंट देंगे। मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा कुछ इसमें बाकी रह जाता है इसके बाद अब। ठीक है, ये बहुत क्लियरली मैंने आपको सब चीजें बता दिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, और ये क्लियर हो गया होगा, और इसको आप वीडियो की रिकॉर्डिंग देख के आप कर पाएंगे इसको भाई। फाइनली दोज हु हैव नॉट डन, वी आर प्लानिंग अ बैच जिसमें हम लोग ये सब करवाने वाले हैं, और वो बैच में मोस्टली कल से ही स्टार्ट हो रहा है ये बैच। तो इट इज फोकसिंग ऑन लॉ सीटी 3 ईयर एंड 5 ईयर। वीकडेज में आपके लीगल के सेशन, वीकडेज में आपके लॉजिकल और इंग्लिश के सेशंस होंगे, एंड वीकेंड्स में आपके लीगल के सेशंस होंगे, करंट अफेयर्स के सेशंस होंगे। इस तरीके से आपका एक प्लानर है जो मैम आपको मैसेज कर देंगे। उसकी फीस जो है वो ऑलरेडी आपको बता दी गई होगी मैम ने, 6999 है। दूसरा मॉड्यूल है, आप ओनली केवल और केवल आप ऑनलाइन लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल मतलब टेस्ट पोर्टल के लिए जा सकते हैं, उसका फीस ओनली 4000 रुपीज है। ठीक है, तो इस पे आपको कुछ भी क्वेरीज होंगी, डिटेल्स होंगी, यू कैन आस्क मैम, श्वेता मैम को मैसेज करके आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये पूरा उसमें सिलेबस है जो आपको हम लोग मैसेज कर देंगे अगर आप उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। सारा उसमें रिकॉर्डेड, कुछ रिकॉर्डेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अब लेक्चर्स नहीं होंगे, तो वो रिकॉर्डेड ही मिलेंगे आपको। लीगल के कुछ लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहेंगे, कुछ लाइव रहेंगे। करंट अफेयर्स के ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, बाकी लॉजिकल, एनालिटिकल ये सब आपके लाइव सेशंस भी मिलेंगे और रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। जहाँ रिकॉर्डेड सब जगह इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैक्सिमम आपका रिकॉर्ड हो चुका है, तो वो रिकॉर्डेड तो मिलना ही मिलना है आपको। प्लस कुछ सेशंस, लाइव सेशंस भी होंगे, जिसमें से लीगल के सेशंस, लॉजिकल के सेशंस, देन करंट अफेयर्स के सेशन एंड ग्रामर और इंग्लिश के सेशंस, जो आपका मैक्सिमम 80% सिलेबस कवर करता है, 75 to 80%, वो आपके लाइव सेशंस होंगे आने वाले 30 दिनों में। ठीक है, वीकडे का टाइमिंग उसमें 6 to 8 ही रहेगा। अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। If you have any query, you can ask me. Anything you wanted to ask, please ask. सर सर वो कॉलेज टाइप में अनएडेड और एडेड क्या था? अनएडेड बेटा वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। एडेड वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कॉलेजेस, जैसे एडेड कॉलेज फॉर एग्जांपल आपका लॉ कॉलेज नागपुर, ठीक है, वो एडेड है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। अंबेडकर अनएडेड है। तो अनएडेड है मतलब फीस वगैरह जो होता है उसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। अनएडेड मतलब उनकी फीस जनरली ज्यादा होती है क्योंकि उनको गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलता। देन आर सम माइनॉरिटी कॉलेजेस, जैसे मुंबई का रिजवी कॉलेज है, वो माइनॉरिटी कॉलेज है। माइनॉरिटी मतलब वहाँ रिजवी है, तो वहाँ मुस्लिम कोटा होता है। ठीक है, अब कोई कॉलेज जैसे ऊषा कोई कॉलेज है उसमें गुजराती कोटा है। कुछ जैसे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें हिंदी हिंदी मिनोरिटीज होते हैं, हिंदी बोलने वालों के लिए। ऐसे अलग अलग टाइप के कॉलेजेस होते हैं, उनका अलग अलग स्ट्रक्चर है। मेरे ख्याल से उतनों पे अभी फिलहाल मत जाइए क्योंकि बहुत ज्यादा अपने को नहीं जाना है। एट द एंड आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट है, मार्क्स आएंगे उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और पूछिए कोई क्वेश्चन किसी को। एकदम परफेक्ट, मैम ने बोला था कि आपको 2 ही घंटे लगेंगे, मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले कवर हो जाएगा। सबके लिए हेल्पफुल है बेटा, सबके लिए। श्रद्धा, आई कैन अंडरस्टैंड those who are doing for first time, for them it is very good, but those who have already done उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि आप इसको प्लान करके चलेंगे तो अपन अच्छा स्कोर कर पाएंगे, काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और एनीवन, एनी क्वेरी? चलिए ठीक है, तो ये हमारे रिजल्ट्स हैं भाई। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने, नागपुर के तो भाई सबकी हो गया था, ऐसा कोई बचा नहीं था। हमारा करीब 30 ऑड का बैच था, तो 30 ऑड के बैच में कोई भी ऐसा नहीं था, 1 या 2 लोगों ने ही ड्रॉप लेके उसके लिए गए, ऑल्दो उनको कॉलेजेस मिल गए थे। बट लास्ट ईयर वी आर Anvi, she got ILS Pune, she is still in ILS Pune. Vedant Raut got ILS Pune. Shubham Lanje, he is 3-year candidate, got GLC Mumbai. इसके अलावा भी जैसे मैंने बोला बाकी स्टूडेंट्स को कुछ और भी अच्छे लॉ कॉलेजेस मिले थे जो यहाँ पे हमने नहीं मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से
ये आप ध्यान रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करते हैं। और ये जो तीनों बच्चों को मैं आपको बता दूं, ये मेरे स्ट्रेटेजी सेशन में भी थे और इन्होंने मुझे बोला भी था आके कि स्ट्रेटेजी जो रीजनिंग को बाद में लेने का वो वक्त किया सर। ट्रस्ट मी, जिन्होंने मॉक नहीं दिए थे और जिन्होंने हमारी स्ट्रेटेजी सेशंस को फाइनली नहीं माना था, उन लोगों को 70 मार्क्स भी नहीं आया था, जबकि वो डिजर्व करते थे 100 मार्क्स। तो ये बहुत मैटर करते हैं सेशंस, आप ध्यान रखिए। ऐसा कोई मजाक नहीं है कि हम विदाउट उसके मतलब कर लें, ठीक है। ठीक है, रिक्वायर्ड है, बहुत रिक्वायर्ड है आपको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर आप ये सब बातों को ध्यान रखेंगे। एंड जो भी आपको चाहिए इसके बाद की डिटेल्स यू कैन आस्क श्वेता मैम एंड देन डिस्कस, ठीक है। लास्ट आई एम आस्किंग लास्ट टाइम, एनीवन एनी क्वेरी you have, if you have any you can ask me now also.